Hello, Assalamualaikum, and good evening, everyone. I'm Aisha Tahirawan, a core team member from Gulfware Pakistan. Gulfware Pakistan is an international organization that is operating in 16 different countries, and we work towards the socio-economic upliftment of women and youth, and we try to connect them to international opportunities. Today, we are excited to host a session regarding Fulbright. As applications are currently open, this is the fantastic opportunity for you all to polish your application and get some last minute tips. Without further ado, let's welcome our special guest, Momal Ijaz. She has been a Fulbright scholar from the cohort 2022-2022 and she was placed in University of Central Florida. Over to you, Momal. Please introduce yourself in detail and lead the session. The floor is yours now. Okay, thank you so much, you guys, for having me. Um, and just want to make sure everybody that we have here can properly hear me. And sweet, okay. And I see most of the folks from Pakistan. Is it fine if I on and off switch to Urdu? Or no? If anybody here doesn't understand Urdu at this point, let me know and I'll stick to English. Mansoor, you don't understand Urdu? Okay. I'm seeing a lot of thumbs up, assuming everybody here does understand Urdu. So I just want to make it more casual and real life, not okay. So I don't mind turning my camera on just so you know who's the person behind the voice. Okay. So hi everyone, and I'd love to see some faces too, but it's all not important, not necessary. So I'm really happy to be here. Hey, hi. And thank you so much, everybody, for taking time out and listening to me. So I was a Fulbright awardee back in 2020. I applied in 2020 and then I flew in 2021 to US. And my major is computer science. And currently, I live in Abu Dhabi, UAE, and I'm a senior machine learning engineer with a leading company here, AI71. And I've been doing that ML engineering kind of work for the past 6 to 7 years. Um, so, yeah. I'm not sure what career stage are you guys on, either regardless of the fact that you're in your mid or early career stage or you have 10, 12 years of experience. Uh, Post grad studies like master's or PhD is something that you don't need a timeline for to apply. And Fulbright is a great opportunity for Pakistani youth to actually fly to the other corner of the world and get to see what we are missing out on actually. Okay, nice, nice. So do I have mostly students here or like what? Kashif said that he's from sixth semester. If you guys could, I want it to be more interactive. I don't just want to keep talking. So if you guys could drop that, if you're a student or if you are already a working professional. Okay, Imrana is also an undergrad student. Who else I got here? Sonia, Arish, Muhammad Irfan Jat. Mohammad Sami said that he's a recent IT grad from BSIT 2024. Oh, sweet. Okay. This is actually perfect because this is when I applied after my graduation. Fresh grad. Okay, nice, nice. Makes sense. So, Aisha Tahiraman is also a fresh grad who recently started working. Arish says that he graduated and working as QA. Sweet. So seems like you guys are all in right and nice places to actually explore this thing. Um,
तो मैं उर्दू में बात करती हूँ ताकि सबको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए. Yes, Arish, I will touch on the topic too. तो फुलब्राइट स्कॉलरशिप जो है उसके बहुत से फ़वाइद हैं. मैंने 2020 में अप्लाई किया था और मुझे 2021 में मिली थी. एंड देन आई फ्लू टू यूएस. और बिफोर आई गो ऑल इनटू द डिटेल्स ऑफ कि इसकी पर्क्स क्या हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देती हूँ कि ये आई कैसे है, इसकी रूट्स क्या हैं. तो फुलब्राइट स्कॉलरशिप जो है बेसिकली इट्स प्रिटी ओल्ड नाउ. एंड ये 1946 में सेनेटर जे विलियम फुलब्राइट ने इनिशिएट की थी ताकि यूएस का दुनिया के बाकी 160 ममालिक के साथ अच्छा कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंज हो सके. तो यूएस गवर्नमेंट बेसिकली जो है फंड करती है स्टूडेंट्स को अक्रॉस 160 कंट्रीज इन द वर्ल्ड कि वो यूएस में आएँ, यूएस के इदारों में पढ़ें, अपना कल्चर लेके आएँ और साथ में यूएस के बारे में भी सीखें. अगर आप इस स्कॉलरशिप की कंपेटिटिवनेस की बात करें तो ये हाईली प्रेस्टिजियस है. आप अपने नाम के साथ फुलब्राइट स्कॉलर लगाएं जहाँ भी जाएं, तो इट्स वेरी रेप्यूटेड एंड पीपल गेट टू नो यू लाइक okay, this person has cracked Fulbright, so they have done something good. 2023 में अगर आप इसका रेट देखें तो तकरीबन 1157 पाकिस्तानी बच्चों ने अप्लाई किया था और इसका एक्सेप्टेंस रेट तकरीबन 217 बच्चों को मिली थी, which is around 18.7%, which I would say is pretty good, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त एक्सेप्टेंस रेट इससे भी कम था 2020 में. और 2023 में जो इससे पिछला कोहोर्ट चला है उसमें एक्सेप्टेंस रेट तकरीबन 18.7% था, जिसमें 70 मास्टर्स के और 18 पीएचडी के बच्चे थे. तो इट्स हाईली कंपेटिटिव, इट्स रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी और इसकी पर्क्स बहुत ऑसम है. तो अगर मैं आपको लमसम में बताऊं, of course most of you students are here, most of fresh grads are there, so they want to see if it's worth it or not. और मेरे ओपिनियन में who has traveled to US via Fulbright scholarship, मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी of how my experience was and then I will let you guys decide. तो अगर आप देखें कि आप एफर्ट कितनी डालते हैं फुलब्राइट स्कॉलरशिप में, फिर आपको वापस कितना मिलता है, तो ये बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है. इससे बहुत फ़ायदा ही होगा आपको. तो आपको जीआरई और टोफल और इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है. आपको एप्लीकेशन पे ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको इंटरव्यू देने के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा. ये आपकी एफर्ट वाला पार्ट है, ठीक है. दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट. और फाइनेंशियल टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो आपको 60-70 हज़ार, जिस वक्त मैंने जीआरई और टोफल का एग्ज़ाम दिया था, बस ये 2 एग्ज़ाम आपने देने होते हैं, तो 30-30 हज़ार के थे ये दोनों एग्ज़ाम. मेरी उस वक्त कोई इंटर्नशिप लगी हुई थी और मेरी तनख्वाही 30 हज़ार थी, तो मैंने एक सैलरी में दोनों टेस्ट दे दिए थे. So basically, this is the financial input or financial requirements और financial liability जो आपकी तरफ से जाएगी. इसके अलावा वो आपसे कोई पैसे नहीं मांगते, कुछ भी नहीं होता. तो ये आपका इनपुट होता है. और एक बार जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप J1 वीज़ा कैटेगरी पे यूएस फ्लाई कर सकते हो. यूएस का वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर आपके नाम के साथ फुलब्राइट अवार्ड ही लगा हो तो मेरा 1-2 दिन में आ गया था. कुछ दोस्तों को मेरे वहीं पे खड़े खड़े ही एम्बेसी में मिल गया था. और आपके ट्रैवल टिकट्स, आपका सब कुछ जो है वो वहाँ पे कवर करते हैं. आपकी यूएस इदारे की ट्यूशन फ़ी और आपका लिविंग स्टाइपेंड सब कुछ वो कवर करते हैं. एंड इट्स रियली ग्रेट. वो बिल्कुल दुनिया का दूसरा कोना है. आपको डिफरेंट एनर्जीज़ का, डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट कल्चर का, आई वुड से जितने भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के हेडक्वार्टर्स हैं, फैंग के जितने भी इदारे हैं, फेसबुक, अमेजॉन, मेटा, नेटफ्लिक्स, गूगल, सब जो है सबके हेडक्वार्टर्स यूएससीए कैलिफोर्निया में है. सो वी हैव सम रियली ग्रेट माइंड्स देयर. तो आपको पता चलता है कि वहाँ के लोग किस एनर्जी के साथ काम करते हैं, किस मेंटालिटी के साथ काम करते हैं, और आपके अंदर religious tolerance भी build होती है when you see people around drinking and eating pork, so you go like okay, I don't have to be crazy religious about it as long as they are respecting my boundaries. तो वो आपकी personal grooming के लिए भी बहुत एक I would say अच्छा step होता है. और फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो जिस भी स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन होता है, जिसकी डिटेल्स में अभी हम जाएंगे सब कुछ,
हर स्टेट के हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलता है। मैं फ्लोरिडा की स्टेट में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा, ऑरलैंडो में मैं होती थी। तो मुझे मिलता था $1400 का स्टाइपेंड। और इसमें आई हैड टू गिव माई रेंट, इसमें आई हैड टू ईट फूड, एंड द रेस्ट ऑफ द मनी वाज माइन। एंड इट वाज प्रिटी चीप एक्चुअली, ऑरलैंडो फ्लोरिडा उस वक्त। मैं 300-400 डॉलर या $500 में अपना महीना आराम से गुजार के, आई इवन सेव्ड इनफ टू travel to New York and DC and even save some more money to come back home as well. So it was totally, the money that they give you is totally sufficient, and you can actually save enough to travel US as well. तो आई गॉट टू ट्रैवल टू न्यूयॉर्क, मैंने DC भी देखा, मैंने US में ऑरलैंडो में डिज्नीलैंड बहुत दफ़ा हम गए। आई मेड रियली ग्रेट फ्रेंड्स, सो इट वाज वेरी 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 वर्थ इट। तो ये सारी पर्क्स थी, but there is one downside of this program. Not downside, but I would say a reality which is not really brought up, क्योंकि इनका इनिशिएटिव या इनका गोल ये है कि ये लोग, क्योंकि ये नहीं चाहते कि लोगों को पाकिस्तान से एस्केप दें, बल्कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का मकसद ये होता है कि वो कल्चरल एक्सचेंज दें और आपको अच्छी डिग्रीज और एजुकेशन दें, ताकि आप पाकिस्तान वापस आके पाकिस्तान को कोई फ़ायदा दो। तो अगर आप वहाँ जाके शादी कर लेते हो, अगर वहाँ जाके आपके बच्चे हो जाते हैं, या फिर आप असाइलम क्लेम करने की कोशिश करते हो, सो नन ऑफ दीज ट्रिक्स वर्क। आप जब एक बार स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट आप साइन करते हो, उसमें ये सब चीज़ें इन्होंने क्लियरली लिखी होती हैं। So this is the only downside of Fulbright scholarship, in my personal experience, ke you have to come back. So if you are someone whose priority is to leave Pakistan, Fulbright scholarship जो है आपको J visa कैटेगरी पे बाहर लेके जाती है। अगर आपके साथ आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ या फिर आपके बच्चे हैं जिनको आप डिपेंडेंट में साथ लेके जाना चाह रहे हो, तो वो J2 कैटेगरी में जाते हैं और वहाँ पे 20 आवर्स पर वीक थोड़ा बहुत काम भी कर सकते हैं। तो मेरे काफ़ी दोस्त थे जो अपना क्या कहते हैं, अपने शोहरों को और बीवियों को साथ लेके गए थे जब वो मेरे साथ वहाँ पढ़ने गए थे। तो ये जो J वीज़ा कैटेगरी होती है, बस फुलब्राइट का सिर्फ ये चक्कर है कि आपको US में इस पे एंट्री देती है और आपको वापस आना पड़ता है। कुछ तरीके हैं, और इसकी एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक बार आपका डिग्री प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो 30 दिन यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपको US छोड़ना है। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आप वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट कंसिडर हो जाते हो, ठीक है। और इमिग्रेशन के साथ कोई भी मजाक नहीं कर सकता, ठीक है। और J वीज़ा कैटेगरी पे जब आप US छोड़ के अपने मुल्क वापस आते हो, तो आप 2 साल से पहले US दोबारा एंटर नहीं हो सकते। इस चीज़ को बोलते हैं 2 ईयर होम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट। मैंने भी पूछा है, कुछ लोगों के पास तरीके होते हैं टू स्किप इट, बट this is something. Sami, please. अस्सलाम वालेकुम मैम, एम आई ऑडिबल? जी जी। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक जैसे आपने कहा कि रिस्ट्रिक्शंस होती है, लाइक यू हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान, तो ये रिस्ट्रिक्शन हमारी इस तरह से है कि हमें पाकिस्तान ही आना है या हम किसी और कंट्री में भी मूव कर सकते हैं, सिर्फ US नहीं रहना, यही रिस्ट्रिक्शन है ना? नहीं, आपको पाकिस्तान आके 2 साल गुजारने पड़ते हैं। आपकी पासपोर्ट पे पाकिस्तान एंट्री और एग्जिट का छपा होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 2, जो एडअप होके एटलीस्ट 2 साल बना दे। तरीके और भी होते हैं, मैं फिर इस चीज़ पे बात करूंगी कि आपके पास, अगर आपने इस रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ करना है या आपका दिल चाहता है मैं इसके बाद PhD परस्यू करो। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने वो वाले पाथ लिए थे, तो Q&A सेशन में मैं उस पर भी बात करूंगी। लेकिन अभी आई फील लाइक आप सब यहाँ पे हो और आप सब जो हो willing हो to actually apply for Fulbright scholarship, तो I can walk you through the process of my application process। मैंने कैसे अप्लाई किया था, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए GRE TOEFL की, उसकी अच्छी रिसोर्सेज क्या हैं, इंटरव्यू की टिप्स क्या हैं, एंड what to expect at the initial stages of application। So this is the agenda that I have planned for the first half actually, and if this sounds good to everybody, अगर सब इसी बारे में बात करना चाहते हैं तो I will proceed। वरना अगर किसी को लगता है कि नहीं, मैं तो इसलिए सेशन में नहीं आया या आई क्योंकि मुझे कुछ और चाहिए था, तो आप अभी हैंड रेस कर दें या माइक अनम्यूट करके बता दें, हम उस बारे में भी बात कर लेंगे। So I'll wait for 3-4 मिनट।
मैम मेरा एक क्वेश्चन एलिजिबिलिटी से है, लाइक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने अभी रिसेंटली डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट दिया है, लाइक वो यूएस में यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेबल होता है, तो क्या ये फुल ब्राइट में भी टोफल की जगह एक्सेप्ट होता है या उसके लिए टोफल ही देना होगा? फुलब्राइट के लिए लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो टोफल एक्सेप्ट होता था, इवन आइल्स भी नहीं लेते थे वो। सो आई एम नॉट श्योर, दिस टोटली कम्स डाउन टू आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट। और टोफल इज समथिंग जिसकी टेंशन आपको स्टेप 2 के बाद लेनी होती है, एक बार जब आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाती है और आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। तो और टोफल की तैयारी बहुत आसानी से हो जाती है अगर आपको, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश दैट आई एम स्पीकिंग, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 2 हफ्ते लगेंगे टोफल की तैयारी के लिए। इसलिए दैट इज़ नॉट समथिंग टू बी रियली वरीड अबाउट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो हम बात कर लेते हैं कि आप फुलब्राइट स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या एक्सपेक्ट करो। मेरे ख्याल से नया कोहोर्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड इफ आई एम राइट तो द प्रोग्राम एक्चुअली इसकी इसकी डेडलाइन जो है वो मेरे ख्याल से 30 जुलाई या 30 जून 2025 बन रही है, और 2026 टू 2027 का जो एप्लीकेशन पीरियड है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है। सो आई कैन वॉक यू थ्रू द, मुझे नहीं पता अभी एप्लीकेशंस ओपन हैं कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले ओपन होती हैं, और अगर डेडलाइन 30 जून है तो आई गेस इट मस्ट बी ओपन। ये लोग ये बातें आप लोग जाके फुलब्राइट स्टूडेंट प्रोग्राम ऑफिशियल IEEE की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा डेडलाइंस एंड ऑल का। बट जो सबसे पहला स्टेप होता है फुलब्राइट स्कॉलरशिप के लिए 5 मार्च है। अच्छा 5 मार्च, लिजा मेंशन दैट, ठीक है, दैट मीन्स you guys are really cutting it short on time. Okay, ठीक है, अगर डेडलाइन इज 5th मार्च दैट मीन्स you guys have roughly 1-2 हफ्ते 10 to 14 days to wrap your Fulbright applications up. And I'm not sure, जब मैंने 2-3 साल पहले किया था, so they asked me to either add the scores of GRE exam that I have taken, or add the deadline, or not actually the deadline, add the test date when I plan to take the GRE, and it cannot be 2 weeks further the application submission deadline. तो ये requirements जब आप application submit करोगे आपको पता चल भी जाएंगी. It's been a while, I haven't pressed that, but GRS. हाँ, थैंक्स मोमिर फॉर अरेंजिंग दिस सेशन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट पढ़ा था कि IRX यू ग्रेड मतलब क्लोजर हो गया कि ये सब एप्लीकेशन सब नहीं होंगी, तो उसके बारे में क्या है मुझे थोड़ा सा बता दिएगा। एंड योर जर्नी फ्रॉम GRE एंड टोफल, क्या आपने कैसे प्रिपरेशन की थी, और आपने स्कॉलर एंड किया था क्या? क्योंकि मुझे ग्रेजुएट हुए हुए भी 1.5 ईयर हो गया, तो सारी चीज़ों को रिकॉल करना, एंड दैट्स ऑल। ठीक है आयुष, तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं भी आंसर कर देती हूँ, क्योंकि दैट्स गोना बी पार्ट ऑफ व्हाट आई वाज प्लानिंग द एजेंडा टू बी। जो दूसरी चीज़ है उस पर हम आखिर में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो एप्लीकेशंस हैं एक्चुअली फुलब्राइट की जर्नी में, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू वरी अबाउट। GRE, टोफल, प्रिपरेशन मटेरियल, इन सब चीज़ों से पहले योर एप्लीकेशन नीड्स बी शॉर्टलिस्टेड, राइट। आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ऑफ कोर्स अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा रहा है, आपकी GPA 3 से ऊपर है तो इट हेल्प्स, लेकिन मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त भी थे जिनकी GPA 3 से नीचे भी थी, एंड वो सिलेक्ट हो गए थे, राइट। तो फुलब्राइट के बारे में, फुलब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में ये पर्सोना, ये माइंडसेट बिल्कुल मत रखे। मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट थी, मेरी GPA 3.9 थी, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त थे जिनकी GPA 3 से कम थी, बट दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओवरऑल प्रोफाइल, जिसकी वजह से उनको फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो फुलब्राइट स्कॉलरशिप में सिर्फ आपकी GRE के स्कोर, या सिर्फ आपकी GPA, या सिर्फ आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस,
अकेले काम नहीं करते, बल्कि ये सब चीज़ें मिला के आपकी प्रोफाइल बनाती हैं। तो वो शॉर्टलिस्ट करने से पहले देखते हैं कि अच्छा हाँ भाई, इस बंदे की GRE स्कोर अच्छा नहीं है या इसकी GP अच्छी नहीं है, लेकिन इसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अच्छा है, इसने 2-3 साल लगाए हैं यूनिवर्सिटी के बाद, या फिर इसने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, या फिर इसने SOP और जो RO लिखा हुआ है जिस पे अभी हम बात करेंगे वो बहुत तगड़ा है, उसमें हमें क्लियर प्लान नज़र आ रहा है। तो वो अगर एक या दूसरी चीज़, 2-3 चीज़ें आपकी एप्लीकेशन में वीक हैं, तो बाकी 2-3 स्ट्रांग हो, तो वो ओवरऑल प्रोफाइल कंसीडर करके चूज करते हैं कि वेदर यू क्वालिफाई फॉर फुलब्राइट और नॉट। सो नेवर एवर गो इन द मोड ऑफ सेल्फ रिजेक्टिंग कि मेरी GPA अच्छी नहीं है, मेरा GRE स्कोर अच्छा नहीं है, मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, या मेरा SOP या RO अप टू द मार्क नहीं है, तो उन्होंने मुझे नहीं लेना। नो, यू हैव नो क्लू, you don't have insights into the internal matrix that they have for evaluating your application, so never ever self reject। ठीक है, तो आपकी फुलब्राइट एप्लीकेशन जो है फर्स्ट स्टेप होता है, उस पर बेहतरीन काम करें। उसमें उन्होंने जितने भी वाई वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट द स्टफ फ्रॉम GPT। यू कैन यूज GPT, चैट GPT इस्तेमाल करें, बेशक उसकी पेड वर्जन ले लें तो और भी अच्छी बात है, $20 एक महीने के दे दें, लेकिन GPT, चैट GPT या फिर जितने भी परप्लेक्सिटी, एंथ्रोपिक, जितने भी ये टूल्स हैं, LLMs हैं आजकल, यू कैन यूज देम टू रीफ्रेज व्हाट यू हैव रिटन। उसमें से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल दो या फिर उसमें से गलतियां निकाल दो, बट द वर्ड्स हैव टू बी योर ओन। इफ यू आर नॉट राइटिंग योर ओन जर्नी, योर ओन थिंग इन द फुलब्राइट एप्लीकेशन, उनको ऑटो रिजेक्ट करने में 2 मिनट नहीं लगने, because now after this LLM era, it will be even easier for them to just find and identify the applications which don't have something unique about you। और अगर आपकी एप्लीकेशन इंशाल्लाह आप सबकी सिलेक्ट हो जाती है और जब आप इंटरव्यू में जाके बैठते हो, तो आपके सामने यही आपकी फुलब्राइट एप्लीकेशन रख के इस ही में से सारे सवाल पूछते हैं कि आपने ये हॉबी क्यों लिखी है, आपने ये वाई का आंसर ऐसे क्यों दिया, इसका जवाब ऐसे क्यों दिया। सो इट्स रियली 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 इंपॉर्टेंट कि आप एप्लीकेशन में जो भी लिखो, दैट कम्स फ्रॉम यू एंड यू नो अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग। तो एप्लीकेशन के बाकी जितने भी सेक्शंस हैं उनको अच्छे से फिल करें। जो 2-3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं मैं उन पे बात करूंगी। फर्स्ट इज SOP। तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उन्होंने कैरेक्टर लेंथ दी होती है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने SOP और RO पे 2 हफ्ते काम किया था एंड आई बिलीव मेरी प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं था। मेरा GRE स्कोर 306 था, विच इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट, क्योंकि मैंने तैयारी ज़्यादा अरसे नहीं की थी, मेरी वोकैबुलरी वीक थी, आई वाज स्ट्रगलिंग विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड द क्वालिटेटिव पार्ट, but I still managed to land Fulbright scholarship because I think my SOP and RO was very strong. And there was a particular link, let me see if I can find it for you guys, अदरवाइज मैं आयशा के साथ शेयर कर दूंगी जो मेरा SOP और RO था, तो आप लोग इंस्पिरेशन के लिए उसको भी ले सकते हैं। उसको छापना नहीं क्योंकि वो फायदा नहीं देगा, बिकॉज इट वाज माय स्टोरी, बट that can give you a good idea of how to write a good one। तो मैं वो लिंक ढूंढती हूँ जिसने मेरी बहुत हेल्प की थी टू एक्चुअली सेटअप, आई वुड से एक स्ट्रक्चर था जो मैंने अपने SOP और RO में डाला था, which made it very strong। ठीक है, तो पहला आपका चेक इन सोर्स जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं SOP या RO के हवाले से वही होना चाहिए। उन्होंने बहुत क्लियरली आर्टिकुलेट किया होता है, लिखा होता है कि उनको आपके SOP में क्या क्या चाहिए, सो यू जस्ट हैव टू स्टिक टू दैट पार्ट। इट्स SOP की अगर आप बात करें, स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट जो आपकी होती है, सो दैट्स द प्लेस वेयर यू कैन कन्वे समथिंग पर्सनल अबाउट योरसेल्फ, राइट। यू कैन कन्विंस द सिलेक्शन कमेटी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक स्टैंडिंग आउट या अट्रैक्टिव कैंडिडेट क्यों है। तो there are some good ways to put that together। I'm gonna share the clear tips and tricks जो मैंने फॉलो की थी। एक तो US Embassy and Consulate in South Africa की टेम्पलेट है, दैट्स वेरी गुड। इसके अलावा फुलब्राइट की तरफ से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स आती हैं, सो यू शुड डेफिनेटली स्टिक टू दैट। आई एम गोना शेयर द लिंक फॉर
this one, ये एक अच्छी रिसोर्स है जो मैंने फॉलो की थी, in the chat for you guys. और ये कुछ सैम्पल्स भी हैं past selected students के, you guys can check this out as well. But if you look at the tips and guidelines, so आपको character limit और सब कुछ बताया हुआ है. और SOP is your personal space जहाँ पे आप लिखते हो कि why you, why they should consider you, what's unique about you, what's unique about your journey, and what motivates you about Fulbright. ये वो जगह होती है जिसमें you can actually convince the reviewers या selection committee to get to know you. आपकी जो स्पेशल ट्रेड्स हैं, आपकी जो यूनिक चैलेंजेस हैं, आप उनको टच अप करो. और यू जस्ट हैव टू बी ऑथेंटिक, यू जस्ट हैव टू बी. यहाँ जो टिप्स इन्होंने दी हुई है एग्जैक्टली मैंने वही फॉलो की थी, एंड आई एम जस्ट रीडिंग देम आउट लाउड एक्चुअली, कि यू हैव टू बी ऑथेंटिक, यू हैव टू बी योरसेल्फ. आप किसी और की स्ट्रगल्स या किसी और के जर्नी या किसी और के पैटर्न्स अपने एसओपी में नहीं डाल सकते, बिकॉज इट वोंट बी यू, यू वोंट बी एबल टू जस्टिफाई इट जब इंटरव्यू में आप बैठोगे. सो दैट्स दैट. एक छोटी सी हाई लेवल टिप जिसने मुझे एसओपी को क्राफ्ट करने में बड़ी हेल्प की थी, दैट वाज के मेरी अपनी पर्सनल जर्नी में मुझे चैलेंजेस क्या आए थे, आई आर्टिकुलेटेड देम, और मेरी फील्ड की तरफ जो रुझान है वो कैसे डेवलप हुआ था. और इसके बाद मुझे याद पड़ता है मैंने मेंशन किया था कि व्हाट मोटिवेट्स मी टू परस्यू दिस स्कॉलरशिप. तो आपका एसओपी और आरओ दोनों जो हैं वो आप जिस भी तरीके से लिखो, वो सिर्फ एक मैसेज ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं उसमें, वो ये कि दिस बंदा हैज और बंदी हैज द सेम विजन एज अस, यानी कि ये यूएस जाके कुछ स्पेसिफिक चीज पढ़ना चाहता है, डिग्री अटेन करना चाहता है, और वापस आके पाकिस्तान को फायदा देना चाहता है. तो आपका एसओपी हो या आरओ हो, उसमें आपकी हुब्बुल वतनी जो है, राइट, योर लव फॉर योर कंट्री हैव टू बी रिफ्लेक्टेड, कि हाउ यू सी स्ट्रगल्स अराउंड यू, और कैसे आपको लगता है कि यहाँ आपको वो एजुकेशन या यहाँ आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही जो आपको मिलनी चाहिए, वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए. आपको लगता है यूएस जाके ये वाली डिग्री लेने से, इस प्रोफेसर के साथ काम करने से, ये वाले कोर्सेज लेने से आपको एक नेक्स्ट लेवल अटेंशन मिलेगी, आपको एक नेक्स्ट लेवल एक्सपोजर मिलेगा, जिससे आप वापस आके ये मसले जो भी आपको तंग कर रहे हैं आप अपने मुल्क में हल कर सकते हो. इसका थोड़ा सा टच आप एसओपी में भी डाल सकते हो, इसका थोड़ा सा टच आप अपने आरओ में भी डाल सकते हो. दिस इज लिटरली द सीक्रेट सॉस. अगर आप ये अपने एसओपी और आरओ दोनों में इस इंग्रेडिएंट को किसी भी तरीके से ऐड कर दो, सो ट्रस्ट मी, दे वोंट हैव, योर एप्लीकेशन बिकम्स राइट अवे वेरी स्ट्रॉन्ग. तो आपका एसओपी और आरओ आपने याद रखना है कि वो चीज क्या है. एसओपी आपका पर्सनल स्पेस है जिसमें आप अपनी पर्सनल स्टोरी लिखते हो. आरओ आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि व्हाट यू प्लान टू अचीव, हाउ यू प्लान टू अचीव, और यूएस उसमें कैसे आपकी हेल्प कर रहा है, और पाकिस्तान वापस आके वो पाकिस्तान की कैसे हेल्प करेगा. बट यू कैन ऐड दिस सीक्रेट इंग्रेडिएंट इन बोथ the components of your application, SOP and RO. Okay, your goal is to actually go get benefit from US, come back and actually benefit your country, क्योंकि उनको asylum claim करने वाले लोग नहीं चाहिए. पाकिस्तानी वैसे ही दुनिया के बहुत से ममालिक में बहुत बदनाम है. So you cannot act like you're gonna run away or you are just going there to escape Pakistan, even if you have plans of not coming back, even if you are not gonna execute all the things you're saying in your SOP. You have to be the most I would say global watan person they can find, right? Because you have to show कि you want to take, क्योंकि ये exchange opportunity है, तो आपने ऐसे ही दिखाना है कि आप इसको as an exchange opportunity ले रहे हो, as an escape opportunity नहीं ले रहे हो. ठीक है, तो ये तो high level tricks थी. Questions में आखिर में लूंगी इससे ज़्यादा. I'm really sorry, I'll take the questions in the end. So SOP का मैं आपको flow बता देती हूँ कि मैंने SOP में लिखा क्या क्या था. SOP में I mentioned my story कि मैं basically पेशावर से हूँ. मैंने I've been struggling a lot. मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, and I've always seen my father empower me and push me. और मैंने ISSB का एग्जाम 2 दफ़ा ट्राई किया था. I failed that because of my eyesight. I wanted to be a GD pilot in Pakistan Air Force. Then I got, but I was very nerd. I was very hardworking, so I got 18th position in metric exam board, which was the BICEP Peshawar. Then I studied in one of the best colleges, attained like 85 to 90% in my higher secondary, and then I just
landed on computer science, but I always had that passion for it. Then I was a good medalist in my undergrad studies as well, and I maintained a good GPA. But I always struggled with finding a good lead, a good path, or finding my voice, or finding good opportunities as a female in Peshawar for the field that I was interested in, which was AI ML. मेरा major जो था वो ML था. And I really think कि US जाके फ्लोरिडा या न्यूयॉर्क या इन इदारों में ये वाले कोर्सेज लेके मुझे वो एक्सपोजर मिलेगा जो मुझे पाकिस्तान में नहीं मिल रहा. I will get the courage, I will get the confidence, and then I plan to come back and I plan to have a startup here. I plan to create job opportunities for girls like me, which will actually help them a lot because I know that I can do it, and I think you guys should believe that too. ये मेरा SOP था. So मतलब you have seen कि मैंने अपना पर्सनल ब्रांड कितनी बेशर्मी से बेचा है. So they were like, okay, इससे तो अच्छी कोई बंदी नहीं है. So you have to mention your struggles, और आपने बताना है कि आपने उनके साथ कैसे फाइट किया है. तो मैंने लड़की होने वाला कार्ड खेला था. मैंने कहा था कि मैं पेशावर में हूँ, मैं एक स्मॉल बैकग्राउंड से हूँ, आई वुड से, तो मेरी अलग स्ट्रगल्स थी, मुझे वहां से निकलना मुश्किल था. सो यू हैव टू सी कि आपकी स्ट्रगल्स क्या हैं, और फिर आपने काइंड अपना पर्सनल ब्रांड बेचना है कि आप उससे फायदा कैसे उठा रहे हो या फिर आप उसके अगेंस्ट फाइट कैसे कर रहे हो. एंड दिस इज समथिंग दैट क्लिक्स विद देम कि हाँ भाई ये बंदा स्ट्रगल कर रहा है, इस बंदे का विजन है, इस बंदे का गोल है, और अगर हम इसको वाकई यूएस बुला के पढ़ाएं तो ये अपने मुल्क को फायदा देगा. दैट्स इट. ये आपकी थीम लाइन, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए जब आप अपना SOP लिखने बैठो कि आपने अपना पर्सनल ब्रांड बेचना है. अपनी स्ट्रगल्स लिखो, बताओ कि आपने कितनी मेहनत की है, एंड शेमलेसली सेल योर पर्सनल ब्रांड कि आपसे अच्छा तो कोई इनको क्लाइंट मिल ही नहीं सकता. आपका SOP वो पढ़े और वो ढेर हो जाए कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की है, इसकी GPA अच्छी नहीं है लेकिन देखो ये कितनी स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है. ठीक है, और इसको हमने US ना बुलाया तो हमारा US रखने का क्या फायदा. So this is the key actually, कि आपका SOP जो है वो इस टेम्पलेट पे मैसेज कम्युनिकेट करे. अब I can take questions. अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें जो यूनिवर्सिटी है वो कैंडिडेट खुद चॉइस करते हैं, जैसे कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, या वो यू ग्रेड की तरह हमारी प्लेसमेंट कहीं करा देते हैं? यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं बात करती हूँ, वो एप्लीकेशन का लास्ट पार्ट होता है. अगर SOP के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जॉब के हवाले से भी मेंशन कर सकते हैं मीनो, अगर लास्ट एजुकेशन के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस हो और विद इन इमिग्रेशन फील्ड ही हो, ये कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं होगा? नहीं, आई डोंट थिंक. आपके मैंने जब अप्लाई किया था फुलब्राइट पे तो मैंने अपने बैचलर्स के बाद 1 साल का गैप लिया था और फिर अप्लाई किया था. तो उस गैप ईयर में मैंने पेशावर के 2-3 सॉफ्टवेयर हाउसेस में इधर उधर की पाइथन लैंग्वेज में इंटर्नशिप्स की थी खाली, और मैंने उसको खूब बेचा था. So if you have work experience, use that to your advantage. कि आपने स्टडीज के बाद गैप लिया है बिकॉज यू ट्राइड टू एक्सप्लोर द लोकल मार्केट, आपने अपना होमवर्क किया है. उसको इस तरीके से पोर्ट्रे करो ना कि आपने जो वर्क ब्रेक लिया है ग्रेजुएट होने के बाद, उसमें आपने क्या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं जिसके बाद यू रियलाइज्ड कि मुझे यहाँ पे रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही वो मसले हल करने की, इसलिए मुझे बाहर जाना है. सो डू एट दैट, इट्स योर प्लस पॉइंट. Another thing is that अगर जॉब एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफर कर जाए लास्ट एजुकेशन से एंड जो फर्दर एजुकेशन जो मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, then what? सो दैट हैपन्स कि अगर आप जिस फील्ड में MS या पोस्ट ग्रेड स्टडीज कंटिन्यू करना चाह रहे हो, आपका बैचलर्स बिल्कुल अलग है या फिर आपका जॉब एक्सपीरियंस अलग है, सो देन इट कम्स टू यू कि आप अपनी स्टोरी पोर्ट्रे कैसे करते हो. यू मस्ट हैव हैड सम गुड रीजंस फॉर मेकिंग दैट डिसीजन, राइट? यू माइट हैव बीन लाइक कि मैं ये वाली जॉब्स एक्सप्लोर करता हूँ बिकॉज आई नीड इंस्टेंट मनी, or I need to support my family, or I need a job right away. You must have had some good reasons. So just be authentic कि आपने वो domain shift क्यों किया था, और अब आपको क्यों लग रहा है कि this is a good field which can actually help me benefit my country more, तो मैं इस पे switch करना चाह रहा हूँ. तो इसमें कोई भी मजाका नहीं है अगर जो काम आपने किया है वो आपकी फील्ड या जिस लाइन में आप परस्यू करना चाह रहे हो उसके साथ अलाइन नहीं हो रहा. मैं मास्टर्स करना चाह रही थी AI ML में, और मेरे पास जो 1 साल का एक्सपीरियंस था वो था पाइथन और बैकएंड डेवलपमेंट में. अब पाइथन तो ठीक है लेकिन बैकएंड डेवलपमेंट का AI ML के साथ कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है. बट आई स्टिल सेड
मैंने अपनी एसओपी में लिखा था कि मुझे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज मिल ही नहीं रही है आईएमएल की। इस्लामाबाद लाहौर में जा नहीं सकती अकेले, मेरी फैमिली मुझे नहीं अलाउ करती है एज अ फीमेल ट्रैवलर मैं अकेले जाऊँ, तो मैं कैसे करूँ? मेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं करूँ, मेरे पास कोर्सेज नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। कोर्सेरा से मैं कितने कोर्सेज लूँ या रिमोटली कितने कोर्सेज पढ़ूँ, यहाँ पे कुछ है ही नहीं कि मैं करूँ। तो आई यूज दैट टू माई एडवांटेज। सो इट कम्स टू योर स्टोरी कि आप कैसे पोर्ट्रे करते हो। ओके ओके, अनदर थिंग मैम, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ल या कैंसिलेशन हो, इस तरह की ट्रैवल हिस्ट्री हो जो कि अप्रूवल ना हुई हो, ये फाइल पे बैड इम्पैक्ट भी करेगी डेफिनेटली। वीजा वाले क्वेश्चंस वी कैन होल्ड फॉर द लास्ट, ठीक है? ओके सो ओके, विल गेट बैक टू दैट। एसओपीज में किसी के सवाल हैं तो वो पूछते जाएं। जी जाकिर। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मेंशन कर सकते हैं एसओपी में? नहीं नहीं, आपको करने की क्या जरूरत है? यू डोंट, आपने अगर पास्ट में आपने यूएस जाने के लिए अप्लाई किया था, वो वीजा किसी वजह से रिजेक्ट हुआ है, यू डोंट नीड टू बी टू ऑनेस्ट ना। हमारे एसएसबी के इंटरव्यूज में हमारे सर बताते थे हमें कि साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज में एक बंदे से किसी आर्मी ऑफिसर ने पूछा था कि आपने जिंदगी में सबसे गलत काम क्या किया, तो ही कन्फेस्ड कि उसने किसी का कत्ल किया हुआ था। सो यू डोंट हैव टू बी टू ऑनेस्ट। अगर कोई चीजें हैं जो आपकी प्रोफाइल पे आपको पता है कि बैड इम्पैक्ट डाल रही हैं, सो जस्ट डिलिबरेटली ड्रॉप देम, डोंट ब्रिंग देम अप, इट्स ओके। सब कुछ ऑनेस्टली बताना जरूरी नहीं है। नहीं, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन इसलिए है ना कि ऐसा तो नहीं होता कि यूनिवर्सिटी के पास कोई इस तरह का डाटा हो जो हमारा शेयर कर ले इमिग्रेशन का डाटा, कि इसने हमें डिक्लेयर नहीं किया कि इसका कहीं से वीज़ा रिफ्यूज़ल या कैंसिलेशन है, बट इसने हमें इसका एक्चुअली है पर इसने डिक्लेयर नहीं किया हमारे साथ। आपके पास वीजा है ऑलरेडी यूएस का? तो रिफ्यूज़ल है बेसिकली, इट्स फाइन, यूएस का नहीं है, फ्रॉम अदर कंट्रीज। इट्स फाइन, इट्स फाइन। इट डजंट इम्पैक्ट योर ट्रैवल प्रोफाइल एट ऑल। इट डजंट। मेरी ट्रैवल प्रोफाइल जीरो थी। मैंने पासपोर्ट पहली दफा यूएस जाने के लिए बनाया था, मैं पहली दफा जहाज में बैठी यूएस जाने के लिए थी। इट डजंट। आप फुल ब्राइट अवॉर्डी हो तो वीजा लगवाना उनका काम है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। जी दैट्स, थैंक यू। ओके ओके, किसका किसका अगला सवाल है? फाहमगीर। यस मैम, मैं अभी ना बैचलर्स कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और साथ में मैं लास्ट 3 मंथ से इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ एज अ पाइथन डेवलपर। और जो मेरी एक्सपर्टीज है वो उसमें एआई भी शामिल है, एमएल भी। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जो है, अगर जैसे आपने कहा कि मैंने 1 साल का गैप लिया था बैचलर्स के बाद, तो अगर मैं अपना एसओपी बनाता हूँ तो उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करूँगा और जो अपनी डिग्री होगी वो भी ऐड करूँगा साथ में। तो गैप तो लाजमी नहीं है ना उसके लिए? नहीं नहीं, गैप बिल्कुल लाजमी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में ही फुल ब्राइट की तैयारी शुरू कर देते हैं। और आपकी प्रोफाइल इसलिए अच्छी है क्योंकि आपका बैचलर्स एक तो बूमिंग फील्ड में आजकल एआई में है, दूसरा आपने बैचलर्स खत्म होने का इंतजार किए बगैर ही इंटर्नशिप ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। तो कोशिश करो इंटर्नशिप में मीटी प्रोजेक्ट्स पे काम करो जिसमें आपको कोडिंग ज्यादा करनी पड़े, जिसमें कोई भी चीज बना रहे हो तो वो छोटी से छोटी यूटिलिटी भी हो लेकिन आप उसके बारे में बता सको कि हाँ भाई मैंने ये छोटा सा टूल बनाया है जो गिट कमिट करते हुए पीआर का मैसेज जनरेट कर रहा है। मतलब वो ऐसी चीज हो जिसकी यूटिलिटी आप लेमैन टर्म में समझा सको, ना टेक्निकल टर्म्स में नहीं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ आप बना लो अपनी इंटर्नशिप के दौरान तो उसको आप अपने एसओपी में डाल सकते हो कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस फील्ड, आई रियली लव बिल्डिंग स्टफ, एंड वो शो करेगा कि आप सच में हो। और आप साथ में मेंशन कर सकते हो कि मैंने फलान जगह पे अपनी इंटर्नशिप के दौरान ये टूल बनाया है या ये यूटिलिटी बनाई है, सिंपल लेमैन टर्म्स में। क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी है वो नॉन टेक्निकल होती है, तो अगर आप उनको किसी तरह समझा सको कि आपने असल में अपना डोमेन इस्तेमाल करके कोई सिंपल यूटिलिटी बनाई है, कोई छोटा सा टूल बनाया है, कोई छोटा सा काम भी किया है, सो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट। सो नो, गैप ईयर इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड यू आर इन अ ग्रेट पोजिशन टू अप्लाई। ओके, तो मैम मैम इस पे रिसर्च वर्क बेस करता है, उसका कोई बेनिफिट होता है अगर हमारे पास रिसर्च वर्क का एक्सपीरियंस है? नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। अगर आप नर्ड हो, आपकी जीआरई और आपका जीपीए अच्छी है और आपके पास थोड़ा बहुत इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है तो वो भी गुड प्रोफाइल है। सालों का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। अक्सर फ्रेश ग्रेड स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर रहे होते हैं, सो यू आर गुड। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि रिसर्च वर्क होता है ना, जैसे साइंटिफिक रिसर्च पेपर होते हैं, अगर वो हमारे बने हुए हैं अपने और जीपीए हमारी ये लो, तो ये बेनिफिट करेगा हमारी स्कॉलरशिप? आपकी पब्लिकेशन है यस मैम, एक पेपर पब्लिश किया हुआ। कहाँ?
मैम ये चाइनीज जर्नल था उसमें। अच्छा, आप उसके लीड ऑथर थे कि नहीं, हेल्पिंग थे खाली? नहीं मैम, मैंने खुद बनाया था। आपने खुद बनाया था? दैट हेल्प्स, दैट Yes, टोटली हेल्प्स देम, दैट इज समथिंग। अगर वो फामगीर, अगर वो अलाइन हो रहा है उस चीज के साथ जिसमें आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करोगे या पीएचडी जिसके लिए भी आप करोगे और उसमें जाके रिसर्च करना चाहते हो, और वो जो पब्लिकेशन आपने की है, अगर वो जो रिसर्च आपने की थी वो उसके साथ अलाइन हो रहा है, सिमिलर डोमेन है, सिमिलर काम है, फिर तो जरूर डालो तो भाई। लेकिन अगर उसके साथ अलाइन नहीं भी हो रहा, जैसे मेरे केस में मैंने भी रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ था बैचलर्स में अपने एफवाईपी में, लेकिन वो किसी और साइड का था और मुझे मास्टर्स कहीं और करना था। वो मैंने बस ऐसे ही कर लिया था क्योंकि मुझे डिग्री निकलवानी थी। लेकिन वो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत टच डाल दिया था उसका कि मैंने इस पे भी बड़ी मेहनत की और ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था और उसको मैंने किसी ना किसी तरह AIML के साथ जोड़ दिया था। तो ये आप कर सकते हो। अगर सेम डोमेन है तो उसको तो सही बेचो अपने SOP में, लेकिन अगर सेम डोमेन नहीं है तो भी जरूर डालो और उसको किसी ना किसी तरह जिस चीज में भी MS करना है उसके साथ लिंक कर दो। यस मैम, मेरा मशीन लर्निंग के रिलेटेड ये वो साइंटिफिक पेपर, तो आगे मैंने AI में मास्टर्स करनी है, तो बस फिर बेस्ट तो रहेगा ये। बस फिर तो बेहतरीन कॉम्बो है। यू टोटली शुड ऐड दैट कि मैंने ये चीज एंड टू एंड डिलीवर किया है, ये पब्लिश हुई है, जाओ इस लिंक पे क्लिक करो और जाके मेरा पेपर देख लो। हाइपरलिंक डाल देना अपने पेपर का। सही है। मैं तो आपको कोई सजेशन देंगी, अभी मैं 6th सेमेस्टर में हूँ, तो डिग्री मेरी कंप्लीट होनी है 26 में। सजेशन मैम कोई एडवाइस हो कि आप ये काम करें, आपकी हाँ, स्कॉलरशिप मतलब वो जरूर करेंगे क्योंकि लेकिन अभी मैं बाकी बच्चों का टाइम नहीं जाया करना चाहती हूँ। सो इफ यू हैव एनी कस्टम क्वेश्चन रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, आपको अगर करियर गाइडेंस चाहिए, बाय द वे आई एम ऑन मेंटोगा व्हिच इज अ मेंटोरशिप प्रोफाइल। अगर आपको 1-to-1 करियर गाइडेंस भी चाहिए तो आई डू दैट एज वेल। आप मेरे साथ 30-15 मिनट्स का सेशन जस्ट फॉर योर प्रोफाइल भी कर सकते हो, जिसमें मैं आपकी कस्टम प्रोफाइल की बेस पे आपको कस्टम करियर गाइडेंस, कोर्सेज, इंटर्नशिप्स, रेज्यूमे क्रिटिक्स, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब कुछ भी करती हूँ मेंटोगा पे, तो आई कैन हेल्प यू विद दैट टू। ओके, आई प्रोसीड। दिस वाज द SOP पार्ट। जो थैंक यू। दूसरी ओके जो दूसरी चीज आती है वो होती है आपका RO या रिसर्च ऑब्जेक्टिव। दिस इज वेयर यू हैव टू गेट अ लिटिल टेक्निकल और आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा बिकॉज SOP वाज ऑल अबाउट यू कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, ठीक है, एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन अगर हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात करें, लेट मी एक्चुअली फाइंड द गाइड फॉर दैट एज वेल। रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है या स्टडी ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये वो जगह होती है जिसमें आपने उनको कन्विंस करना होता है कि आपने जाके ये स्पेसिफिक डिग्री लेनी क्यों है, ठीक है। अगर SOP या पर्सनल स्टेटमेंट की ना कि व्हाई यू, आप डिजर्व करते हो। I'll take the questions in the end. I'm sorry, Suhail. ठीक है, I'll take the questions in the end. Let me just complete. मेरा SOP से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अच्छा, चलिए पूछ लें। क्योंकि मेरा एक वो है, निर्वाण मुझे मशवरे है ना, वो मैं ChatGPT का प्रीमियम वर्जन यूज़ करता हूँ और उसमें मैंने प्रोफाइल बनाया हुआ है। तो मैंने ये कॉन्फ्रेंस और ये सारी चीज़ें मैंने की है, इसके बाद वो खुद जनरेट करता है। नहीं, I won't recommend that now. क्योंकि GPT आपकी प्रोफाइल जनरेट करेगा, आपका SOP लिख के देगा बेस्ड ऑन आपने उससे किस तरह के सवाल पूछे, बेस्ड ऑन दैट हिस्ट्री। GPT डज नॉट नो कि आपकी स्ट्रगल्स क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपने कोई डोमेन क्यों चूज किया है और आप मास्टर्स के लिए बाहर क्यों जाना चाहते हो और आप वापस आके पाकिस्तान को क्या फायदा दोगे। SOP इज अबाउट दैट, सो राइट इट योरसेल्फ, GPT से रिफ्रेश कर। उसमें तो मैं जो प्लेजरिज्म है वो जो टर्निटिन से चेक करा के जीरो करा के, तो कुछ दूसरे कौन से वे हो सकते हैं जो वो डिटेक्ट करे? If those are your words, then कोई भी प्लेजरिज्म डिटेक्ट नहीं होगी। आप पहले एक रॉ वर्जन अपनी इंग्लिश में खुद लिखो
और बेस्ट यही है कि जीपीटी को बोलो कि इसको रिफ्रेश करो, थोड़ी सी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करो, जीपीटी को बोलो कि इसको खुद इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करो, इसमें अच्छे कीवर्ड्स डालो, लेकिन कंटेंट और क्रक्स जो है, मेन पॉइंट्स जो है वो बीच में से ना जाएं। तो अगर वो आपका अपना लिखा हुआ होगा तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो कोई प्लेजरिज्म चेक नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने सारा एसओपी जीपीटी से लिखवाया हो तो वो उनको पता चल जाएगा। वो अगर वो किसी तरीके से शॉर्टलिस्ट हो भी जाए तो इंटरव्यू के दौरान वो बंदा जस्टिफाई नहीं कर सकेगा उस एसओपी को। तो it's good to use it for rephrasing, not for writing entire SOP. ठीक है? ओके, तो मैं जल्दी से रिसर्च या स्टडी ऑब्जेक्टिव की बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी एप्लीकेशन का। तो अगर पर्सनल स्टेटमेंट वाज अबाउट व्हाई यू, के आपको क्यों सिलेक्ट करें वो, तो स्टडी या रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी एप्लीकेशन का, जो कि आपका स्टडी गोल क्या है, सिलेक्शन कमेटी को ये समझने में हेल्प करता है। तो आपने जिस प्रोग्राम में मास्टर्स या पीएचडी को परस्यू करना है, पहले तो यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट, कि आपकी मेजर फील्ड क्या है और उसमें आपके स्पेशल इंटरेस्ट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरा बीएस जो है वो सीएस में था, मैं एमएस करने जाना चाहती थी इन सीएस, और स्पेशलाइजेशन मुझे चाहिए थी मशीन लर्निंग या एआई। तो मैंने ये स्पेसिफाई किया था कि मुझे एमएस करना है कंप्यूटर साइंस में, और उसमें मोर देन 80% कोर्सेज मैं एमएल या एआई के उठाऊंगी। एक तो आपको ये बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि आपने जाके पढ़ना क्या है, कौन सी डिग्री करनी है, कौन सा डोमेन है, और उसमें आपके स्पेशल इंटरेस्ट क्या है, पहली बात। दूसरी बात जो आप बताते हो वो ये होती है कि वाई दिस एरिया, वाई एआई और एमएल, आपको क्यों। अब एआई एमएल को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास बहुत सी आसान चीजें हैं, लेकिन मुझे याद पड़ता है बैक इन द डे जब मैं कन्विंस कर रही थी अपने आरओ में सिलेक्शन कमेटी को कि एआई एमएल में आपको मेरे ऊपर, मेरी डिग्री तकरीबन करोड़ सवा करोड़ की बनी थी। आई डोंट नो हाउ मेनी डॉलर्स वाज इट, 50 और 60, आई एम सॉरी माय मैथ इज सेफ्ड अप, बट अगर कोई बंदा आपके ऊपर करोड़ सवा करोड़ पाकिस्तानी रुपया लगा के आपको बाहर के मुल्क बुला के, आपकी मेरी एक ट्यूशन फी तकरीबन $13,000 की समथिंग होती थी, आई डिडंट पे अ पेनी, दे डिड। बट अगर आपने किसी को कन्विंस करना है कि वो आपको सवा करोड़ या 2 करोड़ की डिग्री करवाए, तो यू हैव टू टेल देम कि why you think this area is important। और यहाँ पे फिर आप वही टच डालते हैं कि आप बताते हैं कि why you are interested in this area and how you think this area will help Pakistan। तो मैंने जब एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर दिया था कि मैंने एमएस करना है सीएस में एआईएमएल स्पेशलाइजेशन के साथ, तो मैंने दूसरी चीज अपने आरओ में यही डाली थी कि आई ट्राइड कन्विंसिंग माय सिलेक्शन कमेटी कि व्हाई आई थिंक एआईएमएल विल एक्चुअली चेंज स्टफ, व्हाई आई फील लाइक इट्स द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मैंने यहाँ वहां से 2-3 एआईएमएल गुरुज की कोट्स पकड़ के वो भी डाली थी। एक कोट डाली थी मैंने शायद एंड्रयू एंग की, जो हमारी फील्ड का गुरु है, माई बाप है हमारी एआईएमएल फील्ड का, कि एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। मुझे याद पड़ता है मैंने अपना आरओ से स्टार्ट किया था। तो यू शुड थोड़ा सा आपको कन्विंस करना चाहिए कि जो फील्ड है आपकी, आपको क्यों लगता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका इतना बूम क्यों है, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दैट एरिया। तो आप दोनों चीजें डालते हो कि ये जो फील्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसमें पैशन क्यों डेवलप हो रहा है। तो मैंने डाला था कि एक तो एआईएमएल बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, ये बहुत सारे डोमेन्स में बहुत सारे डिस्ट्रप्टिव चेंजेस ला सकती है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ब्ला ब्ला ब्ला। और मुझे इसमें इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि आई फील लाइक मैं अपने मुल्क को इस फील्ड में काम करके सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती हूँ। मेरे मेंटोर्स ने भी मुझे इसी फील्ड में परस्यू करने का कहा था। मैंने कोर्सेज उठा के खुद से छोटी मोटी चीजें बनाने की भी कोशिश की है, एंड आई फील लाइक अगर मैं इसमें जाके प्रॉपर मास्टर्स की डिग्री लूंगी तो I'd be able to build really great and cool stuff, which will be able to create jobs and help people around। तो एक बार आप ये बता दो कि डिग्री करनी कौन सी है, फील्ड कौन सी है, स्पेशलाइजेशन कौन सी है। दूसरा आप बताते हो कि आपका एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है और आप उसमें इंटरेस्टेड क्यों हो। इसके अलावा आपने जब आप ये बात कर रहे थे कि आप इसमें इंटरेस्टेड क्यों हो, you have to touch your educational background and your future objectives and goals। तो आप सिर्फ ये नहीं कहोगे कि हाँ भाई एआई जो है वो दुनिया को बहुत फायदा दे रही है और मैं भी एआईएमएल में काम करूंगा, मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है तो इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। आपको लिंक करना होता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि आपने उनको कन्विंस करना है कि अगर
ठीक है भाई, AIML का बहुत स्कोप है, ठीक है भाई, आपको इसमें इंटरेस्ट भी है, सही है, लेकिन आप AIML की डिग्री पूरी कर भी सकोगे? सो लेट मी जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे काफ़ी दोस्तों ने जो मेरे साथ ही BS करके निकले थे, मैंने UET पेशावर से पढ़ा था, उन्होंने भी यहाँ से MS और PhD की है, मैंने भी बाहर से MS किया है। आई हैड अ वेरी हार्ड टाइम, क्योंकि US के इदारे से मास्टर पोस्ट ग्रेड डिग्री लेना, मास्टर्स और PhD वो गप नहीं है, आपको कोर्स और पूरे करने पड़ते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, आपको डेडलाइन फॉलोज करनी पड़ती हैं, आपको प्रोजेक्ट सबमिशन करनी पड़ती हैं, बहुत सारी असाइनमेंट्स होती हैं, और में क्लासेस होती हैं, और आपको GPA मेंटेन रखनी पड़ती है टू सर्टेन लेवल, वरना आपके अगले सेमेस्टर की फीस वो लोग नहीं देते कि ये बच्चा नहीं पढ़ सकता, या ये, तो वो आपको घर वापस भेज देते हैं। तो आपने प्रूफ करना है उनको, और इंशाल्लाह आप सब कर लोगे। इट्स नॉट समथिंग, ऐसा कभी कोई केस नहीं हुआ कि किसी की GPA कम हुई और उन्होंने घर भेज दिया, बहुत कम परसेंटेज है। लेकिन ये RO जो है, ये वो जगह होती है कन्विंस करने की कि आप ये डिग्री कर लोगे, क्योंकि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड मैच करता है इस डिग्री के साथ। आपने इस तरह की डिग्री पहले ली हुई है, उसमें आपने अच्छी GPA या आपने अच्छा वर्क एक्सपीरियंस दिखाया हुआ है, और आगे आगे भी लिंक करते हो कि मेरे जो फ्यूचर गोल्स हैं, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ के स्टार्टअप बनाऊँ, या मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ के फलां फलां कंपनी में काम करूँ, या फलां फलां लोगों की हेल्प करूँ, या फलां वेंचर का पार्ट बन जाऊँ। तो वो जो है, ये डिग्री मुझे उसको अचीव करने में हेल्प करेगी। तो आपको ये लिंक बनाना होता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, दैट अलाउज यू टू कंप्लीट दिस डिग्री, और ये हेल्प्स यू टू फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव गोल्स, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एज वेल। तो मैंने सिंपली ये कहा था कि मैं BS/CS में करके आ रही हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने इस तरह की प्रोग्रामिंग के सारे मुश्किल सब्जेक्ट्स निकाले हुए हैं, तो मैं आराम से MS/CS जो है वो कर लूंगी। और मैंने ML के कुछ इनिशियल कोर्सेज लिए हुए हैं, एंड आई कैन टोटली हैंडल ML के कोर्सेज और प्रोजेक्ट्स भी। और मैंने कहा था मेरा फ्यूचर गोल या ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने पाकिस्तान वापस आके एक AI बेस्ड स्टार्टअप बनाना है, जिससे मैं अपनी जैसी लड़कियों की हेल्प करूंगी टू एक्चुअली लैंड जॉब्स एंड ब्रेक इनटू द फील्ड। और फिर मैंने बनाया भी था आके, फिर वो बंद भी हो गया। So this degree will actually help me gain expertise। मैंने कहा था कि मैं वहां जाके सिलिकॉन वैली का चक्कर लगाऊंगी, मैं वहां स्टार्टअप को फाउंडर से मिलूंगी, मैं उनका पर्सपेक्टिव समझूंगी, और फिर यहाँ वापस आके AIML का स्टार्टअप बनाऊंगी, जिससे मुझे मजीद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का मौका मिलेगा। तो आपको लिंक करना होता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको करंट डिग्री कंप्लीट करने में कैसे हेल्प करेगा, और वो आपको फ्यूचर गोल्स अचीव करने में कैसे हेल्प करेगा। ठीक हो गया। फिर तीसरी जो चीज आपको जरूर टच करनी होती है, और ये मैं जहां से देख के बता रही हूँ, बाय द वे आई एम गोना जस्ट शेयर द लिंक फॉर दैट एज वेल, क्योंकि बस आपको इन ही चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। फिर एक बार आप ये बता देते हो ना, फिर इसके बाद आपने मेंशन करना होता है कि हाउ आर योर रिसर्च इंटरेस्ट्स। बल्कि मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए कि बेसिकली आप लोग भी यहीं से फॉलो कर लेना। तो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, राइट? ओके। अच्छा, फिर उसके बाद है हाउ आर योर रिसर्च इंटरेस्ट रेलेवेंट टू करंट ट्रेंड्स और चैलेंजेस इन योर होम कंट्री। कि जो आपके करंट, बस ये वही बात फिर से आ जाती है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सीक्रेट सॉस है कि अच्छा भाई ठीक है, आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप ये डिग्री जाके कर भी लोगे, लेकिन इस फील्ड से आपके होम टाउन को, आपके होम कंट्री को कैसे फायदा होगा। ठीक है, अल्टीमेटली वो आपके ऊपर 2.25 करोड़ इसलिए लगा रहे हैं कि आप वहां और डिग्री करो और सिर्फ अपने लिए जॉब ढूंढो, नहीं, दे वांट टू सी दैट हुब्बुल वतनी इन यू, कि आप वापस आके एक्चुअली यहाँ के कोई मसले आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिनको आप हल करोगे। ठीक है, तो ये वाला टच आपने जरूर डालना होता है कि मैं यहाँ पे ये चैलेंज देख रहा हूँ, ये चैलेंज देख रहा हूँ। जैसे मैंने देखा था कि उस वक्त जब मैंने ये वाला गोल सेट किया था कि मैं वापस आके कोई AI स्टार्टअप बनाती हूँ, मैंने AI स्टार्टअप्स पे रिसर्च की थी। उस वक्त 2, 3, 4, 5 स्टार्टअप थे लाहौर और कराची में जो AI पे थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। तो मैंने उनको हाईलाइट किया था कि देखो ये AI में कितना थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, कितना फारिग कर रहे हैं, इनको उस विजन का पता ही नहीं है जो इधर सिलिकॉन वैली में हो रहा होगा, जो वो लोग कर रहे हैं। मैं वो लाके इनको गाइड करूंगी कि हम इससे अच्छे स्टार्टअप बना सकते हैं, या हम इस तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मैं आइडियाज लाऊंगी, एक्सपोजर लाऊंगी, क्रिएटिविटी लाऊंगी, कोर्सेज करके एग्जीक्यूशन लाऊंगी, टीम लीड का एक्सपीरियंस लाऊंगी, तो मैं इनकी हेल्प कर सकूंगी और इनके साथ कोलैबोरेट करके एक अच्छा बड़ा स्टार्टअप बना लूंगी, या फिर इनकी मजीद हेल्प करके इनको एक्वायर कर लूंगी या एनीथिंग। तो मैं बहुत बड़ा बेच रही थी, बट द पॉइंट इज कि आपने बताना है कि आपके वहां जाके वो डिग्री लेके आने से पाकिस्तान का क्या मसला हल हो रहा है, या आप कोई भी इशू आइडेंटिफाई कर लो कि ये चीजें हैं जो बाहर की दुनिया इतनी आसानी से AI टूल्स बना के कर रही है और पाकिस्तान में वो AI टूल्स अब तक आ ही नहीं है।
मैं मास्टर्स करके आता हूँ या मैं PhD करके आता हूँ, मैं उस इंडस्ट्री को क्लोजली स्टडी करता हूँ और वहां से जो टूल्स है या जो एक्सपोजर मुझे मिलता है या फिर जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर मुझे मिलता है या बड़े लोगों के साथ बैठ के जो एक्सपोजर मुझे मिलता है, मैं यहाँ आके उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाऊंगा ताकि ये मसला मैं डायरेक्टली हेल्प कर सकूं। मिसाल के तौर पे एक बहुत छोटा सा मसला मुझे याद है कि यहाँ अगर हमें पाकिस्तान में कोई बैंक का कोई काम पड़ता है या फिर कोई और टेलीकॉम का कोई काम पड़ता है तो हमें कस्टमर सपोर्ट फोन मिला के घंटों इंतजार करना पड़ता है कि वो हमारी फोन उठाएं। यूएस में जब मैं थी तो उन्होंने LLMs के दौर से पहले, ये ChatGPT से भी पहले की बात है, विच इज वेरी इंप्रेसिव इन दैट वे कि मुझे कभी किसी इंसान से बात नहीं करनी पड़ती थी कस्टमर सपोर्ट पे। मुझे अपने बैंक फोन करनी है, मुझे अपने इंटरनेट का बिल देना है, मुझे अगर पानी का नल का ठीक करवाना है घर में, मुझे ग्रोसरीज ऑर्डर करनी है, मैं फोन मिलाती थी और वहां से कोई रोबोट बोलता था और मैं उसके साथ इंटरेक्ट करती थी। तो उनकी स्पीच टू टेक्स्ट सर्विस और फिर उनकी इंटेंट रिकॉग्निशन और फिर आगे से जवाब देना, और अगर रोबोट से बात नहीं समझ हो रही तो कॉल डायरेक्टली ह्यूमन कस्टमर्स को ट्रांसफर हो जाती थी, ह्यूमन ऑपरेटर्स को। अब ये इतना सटल सा यूज केस था जो वहाँ हर कंपनी, हर चीज, बैंक है कि टेलीकॉम है कि नलके वाला है कि दरवाजे सही करवाने, हर सर्विस यूज कर रही थी। और पाकिस्तान में ये नहीं, पाकिस्तान में ये चीज़ मिसिंग है और हमारे पास ह्यूमन ऑपरेटर असिस्टेंस इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसका कोई एक स्टार्टअप अभी भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो ये काम करता हो। तो मैं जाऊंगा, इस तरह के टूल्स यूज़ करूंगा, इस तरह के स्टार्टअप्स को एक्सप्लोर करूंगा, स्टडी करूंगा, वापस आके इस तरह की कोई चीज़ बनाऊंगा। सो ये सिर्फ एक यूज़ केस है। आपने अपनी फील्ड देखनी है, ठीक है, अपनी डिग्री देखनी है और फिर आपने देखना है कि ऐसा कौन सा मसला है, छोटा हो बड़ा हो, दैट डजंट मैटर, वो ऑथेंटिक हो। ऐसा कोई मसला पाकिस्तान में आपको नजर आ रहा है जो आपकी डिग्री लेके आके आप हल कर सकते हो, एंड दैट कुड बी एनीथिंग। आप बोलो मैं फलां जगह जाके जॉब करके ये इनिशिएटिव लूंगा, या मैं ये छोटी सी नॉन प्रॉफिट चीज बनाऊंगा, या मैं ये स्टार्टअप बनाऊंगा। इट कैन बी एनीथिंग बट यू हैव टू बी कंक्रीट कि वो मसला आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है और आप कैसे हल करोगे, ठीक है। And that answers this next question as well, कि how your research interest is relevant to current trends or challenges in your country। कि जो डिग्री आप लेके आ रहे हो, ठीक है, आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है, आपने बाहर जाके जिस भी चीज़ पे रिसर्च करनी है वो आपके मुल्क में चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व कर रही है। अगर हम ये टेलीकॉम वाली एग्जांपल लें तो आप लेट्स से आप वॉइस बॉट्स की या फिर STDs की या रोबोटिक्स की कोई भी लैब है आपकी यूनिवर्सिटी में, आप उस प्रोफेसर का नाम लिखो, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखो कि मैं इस फलां प्रोफेसर के साथ जाके या इस फलां प्रोफेसर के साथ जाके मैं जो है रिसर्च करना चाहता हूँ। सो दैट विल रिफ्लेक्ट कि हाँ ये मसला है और ये बंदा जाके उधर जाके इस तरीके से पढ़ना चाहता है, एंड दिस विल रिफ्लेक्ट कि हाउ विल यू अप्लाई योर स्टडीज अपॉन रिटर्निंग टू योर होम कंट्री। तो ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि मैं वापस आके आई स्टार्टअप बनाऊंगी, आपका भी कोई ना कोई प्लान RO में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ भाई मैं जाऊंगा, मैं वहां जाके पढ़ूंगा और वापस आके मैं ये काम करूंगा, ठीक है। कोई छोटा सा प्लान होना चाहिए कि आपने वापस आके करना क्या है, बिकॉज दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। रेफरेंसेस टू प्रपोज्ड यूनिवर्सिटीज और फैकल्टी शुड नॉट बी मेड। हाँ, ये एक अच्छा कैच है कि आप RO में नहीं लिखते हो कि आपको किस यूनिवर्सिटी में या किस लैब में या किस प्रोफेसर के साथ काम करना है। इसके लिए एप्लीकेशन में एक अलग हिस्सा मुख्तस होता है, आप वहाँ जाके लिखो। आप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज, प्रोफेसर या कोर्सेज का नाम मेंशन ना करो तो इट्स गुड। आप कह सकते हो कि मैंने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की और प्रोफेसर हैं जिनका मैंने जिक्र एप्लीकेशन में किया हुआ है और मैं उनके साथ जाके ये सब कुछ करूंगा या रिसर्च करूंगा या काम करूंगा, उनके नाम RO में मत लिखो। The essay should be at least 1 or 2 page long, and please use your own words. If you're planning to use someone else's work or research, you must credit the sources at all times. अगर आप किसी और का काम अपने RO में यूज करो, एंड दिस इज हाउ यू अवॉइड प्लेजरिज्म, अभी किसी ने सवाल भी पूछा है, अगर आप किसी और का काम यूज कर रहे हो, और काम से ये मुराद नहीं है कि अगर मैं भी आपको अपना RO दिखाऊं जो सिलेक्ट हो गया था, या अगर मैं आपको 2-3 सैंपल सिलेक्टेड ROs बताऊं तो आपको कि हाँ मैंने वो लिया था। किसी का काम साइट करने से मतलब है कि आप बोलो कि X% या Y% रिसर्च जो है वो कह रही है कि मतलब आप कोई फैक्ट्स या स्टार्ट्स इंक्लूड कर रहे हो, या फिर आप क्या कहते हैं, आप अपनी रिसर्च ऑब्जेक्टिव में या कन्विंस करने में, या फिर कोई करंट चैलेंज जो आपने आइडेंटिफाई किया है पाकिस्तान में, उसमें आप कोई स्टैट्स यूज कर रहे हो, तो आप कोई भी फैक्ट्स या स्टैट्स अगर यूज कर रहे हो तो आप उसकी रिसोर्स को क्रेडिट करो कि पाकिस्तान में X% या Y% लोगों को ये मसला है, तो उसमें बताओ कि ये रिसोर्स कहाँ से रही है। मतलब आप खुद से नंबर्स तो नहीं बना रहे हो, या फिर आप बताओ अगर अपनी फील्ड को जस्टिफाई कर रहे हो कि AIML का बूम इतना ज्यादा है और ये इतने $1 बिलियन की मार्केट है, तो भाई आपको कैसे पता चला है, कहाँ से पड़ा है, वो रिसोर्स डालो एज पर
XYZ रिसोर्स ये हो रहा है, ठीक है। तो फैक्ट्स या टैक्टिक्स या स्टार्ट्स जितने भी आपकी आरओ में होने चाहिए, दे शुड ऑल द टाइम हैव द सोर्स क्रेडिटेड, क्योंकि वो उन फैक्ट्स को मजीद रिलायबल बनाती है। एंड दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट यू राइट इन योर आरओ। तो SOP इज वाई यू एंड RO इज बेसिकली कि आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सॉरी और जो आपका रिसर्च या स्टडी गोल है वो, तो वो ये दोनों आपकी एप्लीकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पीसेस होते हैं। इनमें यू डेफिनेटली हैव टू अवॉइड प्लेजरिज्म। साइटेशन का इन्होंने जिक्र किया हुआ है, साइटेशन यू हैव टू डू व्हेन यू आर रेफरेंसिंग किसी का काम, कोई स्टैट्स, कोई फैक्ट्स, तो आप बताओ कि फलां ऑथर ने या फलां बंदे ने ये कहा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। अगर किसी की कोट्स डाल रहे हो, जैसे मैंने एंड्रयू यांग की डाली थी, तो उनका नाम लिखो कि ये आपके अपने वर्ड्स नहीं है, आपके अपने वर्ड्स पता चलने चाहिए। अगर आपने किसी और का वर्ड, किसी और का काम या कहीं और से फैक्ट्स या स्टैट्स उठाई हैं, तो बस उसको कोट करो। और एज लॉन्ग एज यू राइटिंग योर ओन वर्ड्स, प्लेजरिज्म कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होती। तो ये जो लिंक है मैंने आपके साथ शेयर किया है, बस एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग रखो कि SOP में वो समझना चाह रहे हैं वाई यू, और RO में समझना चाह रहे हैं कि आपने जाके पढ़ना क्या है। और एक एक पीस जो उन्होंने लिखा हुआ है कोशिश करो बस आपके SOP RO दोनों में उन पे एक एक पैराग्राफ हो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। एग्जैक्टली, एंड यू आर ऑल सेट। RO में बताओ कि आपका स्टडी गोल क्या है, पर्सनल स्टेटमेंट में बताओ कि वाई यू, एंड दैट्स इट। अब किसी का कोई सवाल है SOP RO पे? मगरिब नमाज का टाइम है। Okay, I guess I'm also done almost. I just wanted to talk about the SOP and RO. और इसके बाद आप एप्लीकेशन के एंड में स्पेसिफाई कर सकते हो यूनिवर्सिटीज, उसमें बैलेंस रखो, उसमें सारी आईवी लीग्स मत डालो, क्योंकि अगर आपने सारी स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और ये सब डाल दी तो, और अगर आपको GRE स्कोर अच्छा ना हुआ, क्योंकि उनमें घुसना बहुत मुश्किल है। मेरे कुछ दोस्त गए थे स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड में, एक MIT में भी हुआ था। बट इफ़ यू नो कि आपकी GRE स्कोर या GPA या आपका वर्क प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो देन डोंट पुट टू मेनी आईवी लीग्स, यू हैव टू मेक अ नाइस बैलेंस। मैंने डाली थी हार्वर्ड CMU और नहीं स्टैनफोर्ड CMU और यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो CMU, वो तो मैं कह चुकी हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो, UCF जो मेरी है, और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। तो आप देखो कि जो आपकी डिग्री है QS वर्ल्ड रैंकिंग में जाके देखो कि उसकी रैंकिंग क्या है। फिर दूसरा उसका देखो कि जो आप जिधर से आपने MS करना है उस डिपार्टमेंट की रैंकिंग क्या है। तो ये आपको QS रैंकिंग की वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो 1-2 आईवी लीग्स डालो, ठीक है, और 2-3 जो हैं नॉर्मल यूनिवर्सिटीज डालो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ताकि आप खुद चूज कर सको। एंड दैट्स इट। आप इस तरीके से सारी एप्लीकेशन क्राफ्ट करके कमेटी को सबमिट कर देते हो। आई गेस विद इन अ वीक आपको ईमेल आ जाती है if you're selected or not. Ji Rehman. Oh, I guess net issue. So yeah, you just craft application this way. आप सबमिट कर देते हो, आपको एक हफ्ते बाद ईमेल आ जाती है कि आप सिलेक्ट हुए हो कि नहीं। फिर आपको वो इस्लामाबाद बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। और GRE पे मैंने टच नहीं किया, लेकिन GRE के लिए एटलीस्ट 2 से 3 महीने रखें तैयारी के। अगर टाइम आपके पास कम है तो जितना भी टाइम बचा है जस्ट गिव इट ऑल टू GRE। जो GRE का एग्जाम होता है ग्रेजुएट, आई डोंट इवन रिमेंबर द एक्रोनिम फॉर इट, लेकिन GRE एग्जाम जो है वो US की यूनिवर्सिटीज में पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। और आपकी खैर हो, इतना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा सा प्रेशर वाला एनवायरनमेंट होता है। 4 घंटे का टेस्ट होता है और आपको बीच में ब्रेक भी मिलती है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी सुहेल, मैंने लिंक्स में शेयर की है। आई डोंट नो, आई गेस आई विल रीशेयर इट। मैं क्या कह रही थी, GRE के लिए जितना भी टाइम बच गया आप लोगों के पास उसको फुली यूटिलाइज करें। अगर आप लोगों ने अपने टेस्ट स्केजुअल कर लिए हैं तो वेरी गुड, दे चुके तो और भी अच्छी बात है, और अगर नहीं दिए तो जल्दी से स्केजुअल करें, क्योंकि मेरे ख्याल से एक सर्टेन लिमिट है जिसके अंदर अंदर आप GRE दे सकते हैं। क्योंकि अगर सबमिशन डेडलाइन एप्लीकेशन की 5 मार्च है तो फिर GRE के लिए भी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सेक्शन पे फोकस करें। GRE वो एग्जाम है जो US के इदारे जो हैं MS या PhD के लिए सब लोगों से दिलवाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर डोमेन। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप फिजिक्स के हो, आप CS के हो, कि आप सिविल इंजीनियरिंग के हो, आपको GRE देना पड़ता है पोस्ट ग्रेड स्टडीज के लिए।
5th या 6th क्लास की इंग्लिश और मैथ्स होती है जीआरई में। जो इंग्लिश होती है उसको कहते हैं क्वालिटेटिव, और जो मैथ्स होती है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव सेक्शन। इसकी स्कोरिंग थोड़ी अजीब सी होती है, 250 से शुरू होती है, और ऑन एवरेज आपका जीआरई स्कोर एटलीस्ट 300 से ऊपर आना चाहिए, ताकि आप डिसेंट इनफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन स्कोर कर सको। जैसे मेरा कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था, 306 था, लेकिन 315 318 की रेंज में अगर आप आ रहे हो तो ये वेरी गुड। अगर 300 से ऊपर आ रहे हो तो फिर भी आपका हो जाएगा, अगर प्रोफाइल में बाकी चीजें अच्छी हैं तो। और जीआरई की द गो टू रिसोर्स जो है वो मैनहट्टन की 10 बुक्स हैं। इतनी पतली पतली बुक्स हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो कोशिश करें कि पहले जीआरई का स्ट्रक्चर समझ लें, फिर उसके बाद दिन में 4 से 5 घंटे बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी टाइमर लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करें। प्लीज 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 टाइम्ड प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ पे क्लॉक चल रही होती है, आप बिल्कुल सेग्रीगेटेड होते हो, और कैमरा ऊपर भी लगा होता है और शीशे की दीवार से वो आपको पीछे से भी देख रहे होते हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर वाला माहौल होता है। बट ऑल इज वेल, अगर आप की टाइम प्रैक्टिस है तो यू विल बी फाइन। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ट्राई डूइंग एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। वोकेबलरी पे काम करें, अपने कुछ वर्ड्स कोशिश करें रोज अपनी वोकेबलरी में कुछ वर्ड्स जो हैं वो ऐड करते जाएं। बट एज यू कैन टेल, मेरी इंग्लिश कोई बहुत ज़्यादा आला नहीं है, ना ही मेरी वोकेबलरी थी और ना ही मेरा जीआरई स्कोर था। मेरा गोल था फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लेके यूएस जाके पढ़ना, एंड दैट स्टिल वर्कड आउट विद माई कैलिबर। तो अगर किसी को लग रहा है कि उन्होंने जीआरई को टॉप करना है तो कतई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बैरियर है जो आपको पास करना है to get into a decent enough US की university, unless and until you are targeting an Ivy League like Stanford and Harvard और आपकी वैसी प्रोफाइल भी है, then I can't guide you, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो बस ये सीन होता है। आप अच्छे से जीआरई की तैयारी करो, अच्छे से आरओ एसओपी पे काम करो, अपनी एप्लीकेशन पे दिल लगा के काम करो। सीजीपीए बिल्कुल नहीं रिक्वायर्ड, मिनिमम परसेंटेज या सीजीपीए की कोई क्राइटेरिया नहीं है। वकार आपकी ओवरऑल प्रोफाइल वो देखते हैं। अगर आप की जीपीए अच्छी नहीं है लेकिन आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, सो यू विल स्टैंड अ गुड चांस। अगर ये दोनों अच्छे नहीं है, जीआरई में कुछ तीर मार के दिखा दिए तो कहेंगे हाँ यार इस बच्चे को मौका देना चाहिए। तो इट टोटली डिपेंड्स। सो आई एम ओपन नाउ फॉर क्वेश्चंस, सो जस्ट open your mic and ask anything you guys want to. That's all I wanted to share. मैम मेरा एक क्वेश्चन है आरओ से रिलेटेड, कि जब हम लाइक डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो हम अगर उस पर प्रोफेसर की नेम मेंशन कर दें, लाइक आई हैव कॉन्टैक्टेड दिस प्रोफेसर बिफोर, तो हमारा केस स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो क्या फुलब्राइट में भी सिनेरियो होता है कि हम पहले से कुछ डिपार्टमेंट्स या स्पेसिफिक प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट करें और अपनी आरओ में मेंशन करें लाइक आई एम विलिंग टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोफेसर, तो इस तरह से शोकेस होगा लाइक ही इज़ हार्ड वर्किंग एंड ही इज़ डन हिज होमवर्क। तो ये चीज़ होती है फुलब्राइट पे या ये सिनेरियो नहीं होता? तो आरओ आप पीएचडी के लिए जा रहे हो सभी? मैम लाइक मैं फुलब्राइट के लिए मास्टर्स के लिए पूछ रहा हूँ कि हम पहले से कोई प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट करके उसको अगर हम आरओ में नेम मेंशन करेंगे स्पेसिफिक प्रोफेसर की सुपरविजन में हम काम करना चाहते हैं, तो उसे ये चीज़ शोकेस होगी लाइक आई हैव डन माय होमवर्क और ही इज़ हार्ड वर्किंग एज रिसर्च की हुई है लाइक इससे रिलेटेड। मैंने नहीं किया था, और मैंने वहाँ जाके यूसीएफ, मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी और लैब को रिसर्च किया था कि वहाँ पे बहुत अच्छी कंप्यूटर विजन की लैब है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और फिर वहाँ जाके मुझे एक बहुत अच्छे प्रोफेसर मिल गए थे जिनके साथ मैंने सीवीपीआर में, जिसमें स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के पेपर्स पब्लिश होते हैं, एनटीयूएनजी के पेपर्स पब्लिश होते हैं, उसमें मैंने पेपर पब्लिश किया था उनके साथ काम करके। और मुझे ना पता चलता अगर मैं वहाँ जाती ना कि इतना अच्छा प्रोफेसर मौजूद है। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कि आपको स्पेसिफिक प्रोफेसर्स या रिसर्च लैब्स का मेंशन करने की ज़रूरत है मास्टर्स के लिए एटलीस्ट। आप हाई लेवल गोल बताओ कि इस रिसर्च में होने वाली अच्छे अच्छे इदारे जो हैं वो यूएस में मौजूद हैं, और आप होमवर्क जो है स्पेसिफिक इदारों के बारे में अपने वो जो एप्लीकेशन के आखिर में 5 यूनिवर्सिटीज़ आप में डालनी होती हैं उसमें करो इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ऊपर एक आईवी लीग रखना, फिर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, क्योंकि फुलब्राइट वाले थोड़े बाय द वे पैसे भी बचाते हैं। जब आप फुलब्राइट पे किसी यूएस के इदारे में पढ़ने जाते हो तो आधी फीस आपकी यूनिवर्सिटी माफ करती है और आधी फुलब्राइट पे करती है। तो और गवर्नमेंट इदारे जो होते हैं उनकी फीस कम होती है और वो माफ भी कर देते हैं, फीस आसानी से कम भी कर देते हैं, तो उनको पैसे बच रहे हैं तो वो कोशिश करते हैं कि आपको प्राइवेट या आईवी लीग की बजाय ऐसी यूनिवर्सिटीज में घुसा दें जिधर उनको मुनाफा हो, पैसे बचे। तो कोशिश करो कि आप बैलेंस इस तरीके का दो। अब मेरी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी, उसकी क्यूएस रैंकिंग 140 से समथिंग थी, लेकिन उसका सीएस का डिपार्टमेंट बहुत फिट था, मैंने बहुत कुछ सीखा था वहाँ पे।
तो अगर आपने यूनिवर्सिटीज का होमवर्क ऐड करना है ना, तो यूनिवर्सिटीज का एक्चुअल होमवर्क ऐड करके उस प्रेफरेंस लिस्ट में डालने पे फोकस करो, नॉट इन द एसओपी और आरओ। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर इफ़ पॉसिबल आप एक डोमेन स्पेसिफिक सेशन भी रखें, लाइक ए आई एल एम एल से रिलेटेड, इन केस इफ यू हैव सम टाइम। आपका पूछना है? अगर आपको डोमेन स्पेसिफिक एआई एमएल या एलएलएम्स में जन एआई इंजीनियरिंग उस पर कोई क्वेश्चंस हैं तो आई हैव शेयर्ड माय मेंटोगा प्रोफाइल, आप उस पर 30-40 मिनट का सेशन मेरे साथ रख सकते हो एंड आई कैन गिव यू योर करियर स्पेसिफिक एडवाइस कि आपको आप करियर में कहाँ पे हो, आपको अपनी प्रोफाइल्स कैसे ऑप्टिमाइज करनी चाहिए और आपको किस डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें लर्न करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए एंड व्हाट आर द मार्केट एंड रिसर्च ट्रेंड्स। तो आई लव टू डू दैट। आई एम नॉट श्योर अबाउट अ फ्री session for that. Maybe next week if I have time. I cannot commit, but we can see if we have enough audience. But yeah, I can do that. But if that doesn't get arranged, so you can always reach out to me on Mentoga. Okay ma'am, thank you so much. Of course. Anybody else wants to ask anything, you guys? I'm here. मैम आप फुल ब्राइट स्कॉलर हैं, तो मैम एसओपी और जीआरई के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी एप्लीकेशन को पॉलिश कर देती है? आपकी एसओपी और आरओ आर लाइक वेरी टू स्ट्रॉन्ग पिलर्स। इसके अलावा आपका जीआरई स्कोर एक अच्छी चीज होती है। आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका जिक्र जरूर करें एसओपी में, या फिर एप्लीकेशन में कोई और हिस्सा है तो। व्हाट एल्स? मैम आपकी मीन जी लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मीन में क्या आ सकता है जो हमारी एप्लीकेशन को पॉलिश कर सके, जो एप्लीकेशन जो कमेटी है जो देखे कि इसने काम ज़्यादा किया हुआ है, लाइक वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस? वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत डाल दें, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा फर्क पड़ता है अगर वो आपकी डोमेन या फील्ड के साथ अलाइन नहीं है। अगर आप AIML या फिर अगर आप सिर्फ CS में मास्टर्स करने जा रहे हो और आपने कोडिंग कॉम्पिटिशन्स अरेंज कराए हैं या फिर आपने DSA डीप रूम्स अरेंज कराए हैं या इस तरह का कोई काम वॉलंटियर में किया हुआ है जो आपकी नर्डीनेस शो कर रहा है ना, दैट हेल्प्स। अगर आपने ऐसे ब्लड डोनेशन ग्रुप में पार्टिसिपेट किया हुआ है या फिर आपने स्कैवेंजर हंट टाइप चीजों में डाला हुआ है तो डाल दो, आपकी एक्टिवनेस शो करता है। लेकिन वो नर्डी बंदे ढूंढ रहे हैं तो डालने पे नुकसान नहीं है, लेकिन अगर उससे ज्यादा भारी चीजें इंपॉर्टेंट वाली अच्छी चीजें हैं तो एक्स्ट्रा में से वो डालो तो बेहतर है। वरना फोकस करो अपने एसओपी, आरओ, जीपीए, जीआरई और टोफल पे। दैट्स इट। दैट्स मोर देन इनफ दे फोकस ऑन टू शॉर्टलिस्ट यू। ओके मैम। Okay, so I have one question. When you are trying to portray your future goals or you are trying to plan your 2 year study over there, so Fulbright sends you on J1 visa. So can you state in SOP or research objective that you want to do internship over there? Because I'm not sure that J1 visa allows you to work outside campus. And what are your point of views on that? J1 पे आप काम कर सकते हो, 20 आवर्स पर वीक काम आपको अलाउड होता है और आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने नहीं किया था, मैंने फुली एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन आप इवन जाके स्टारबक्स में बैरिस्टा भी लग सकते हो फॉर 20 आवर्स पर वीक अगर सिर्फ एक्सपीरियंस करना तो। मेरी बकेट लिस्ट है वैसे। सो यू कैन डू 20 आवर्स पर वीक वर्क फॉर एंड इवन गेट पेड, but you have to let the Fulbright committee know, you have to let your PO know, PRO actually, आपका जो people representative officer होता है कि POC आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी आप एक आपको मिल गई स्कॉलरशिप तो आपको एक बंदा असाइन हो जाएगा, फिर आपके जितने भी मसले हैं सारे आप उस बंदे से डिस्कस करते हो जो आपका असाइंड ऑफिसर होता है Fulbright कमेटी में। But yes, you are allowed 20 hours per week work on J1 visa during your masters। 20 घंटे से ज्यादा मेरे ख्याल से आप काम करो तो मसला होता है, तो you can। Okay, so I have one more question. When you just graduated and you were hunting for scholarships for your grad school, so Fulbright was the only one on your list, yeah, you hunted for other scholarships too, and you just got selected for Fulbright and you decided to move on with this. Yeah, you were shortlisted in others too, but you preferred Fulbright on our others. फुलब्राइट से पहले मैंने कॉमनवेल्थ यूके वाली स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था, उससे मैं रिजेक्ट हो गई थी। शिवनिंग का मैंने सोचा था। यूरोपियन और जर्मन इटालियन यूनिवर्सिटीज में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वहाँ मैंने जाना नहीं था तो उधर मैंने कुछ नहीं किया था।
और कुछ यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्टली अप्रोच किया था, वहाँ से भी रिजेक्ट हो गई थी। फिर एक साउथ कोरिया में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ हमारे एक प्रोफेसर होते हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आई नीड to go to foreign country for postgrad studies. So Korean Advanced Institute of Science and Technology, it's like a very great university in South Korea. QS ranking इसकी तकरीबन 40 बनती है, बहुत अच्छी है। मैंने उसमें अप्लाई किया था फॉर PhD और मैंने साथ में फुल ब्राइट पे अप्लाई किया था और मेरा दोनों में हो गया था। तो मैंने of course US is the ultimate destination. US के आगे कोई नहीं है, so US over all other scholarships. But if you don't want to, then you have Commonwealth, Shivning, Erasmus Mundus, इस तरह के बहुत से ऑप्शन हैं जो आप देख सकते हो। But US Fulbright scholarship takes you to US, and मेरे बहुत से दोस्त मेरे साथ ही दूसरे मुल्कों में गए थे। None of them had any experience closer to what I had because I am biased. I love US. I love the energy. I love the country. I love the vibe. Racism बिल्कुल नहीं है। I didn't experience any. मैं निकाब करती थी, मैं बुर्का पहनती थी, मुझे कभी कोई भी मसला नहीं हुआ। तो it's your personal choice, but I would say if you feel like आपको पाकिस्तान वापस नहीं आना तो फिर दूसरी स्कॉलरशिप देख लो, वरना पाकिस्तान वापस ना आने की फुलब्राइट पे भी कुछ तरीके हैं। So yeah, if you guys लिजा कह रही हैं while applying for different scholarships how can you ask for reference letters from your professors again? You can, बेशर्मी से पूछें। मैंने ये किया था कि मैंने अपनी BS की यूनिवर्सिटी में 2-3 प्रोफेसर्स फिक्स कर लिए थे जिनसे मैं मांगती थी रिकमेंडेशन लेटर, और उनको फुलब्राइट के लिए तो मेरे ख्याल से उस प्रोफेसर को उसी टाइम पे साइन करके, आप कोई हार्डकोर लेटर लेके साइन नहीं करवा सकते हो, आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हो और फिर वो साइन करके दे देता है। तो मैंने तो उस प्रोफेसर के साथ पहले ही बात कर ली थी, मैंने उनके साथ FYP किया था, उनको मैंने कहा, और कोई ऐसा प्रोफेसर होना चाहिए जिसने खुद बाहर से पढ़ा हुआ हो तो और भी अच्छी बात है, जिसने कुछ पब्लिकेशंस की हो। ऐसे वैसे हर प्रोफेसर की रिकमेंडेशन नहीं लेने ना, कोशिश करो कोई ऐसा प्रोफेसर हो जो तगड़ा सा हो। और टेम्पलेट उस प्रोफेसर के साथ पहले से शेयर कर दो, अपनी अच्छी सी तारीफें करके एक रेफरेंस लेटर लिखवाओ, GPT से उसको रिव्यू करो और फिर प्रोफेसर को बोलो प्रोफेसर ये देख लें, इस पे खाली इसको देख के खाली साइन कर दें कि ये आपके वर्ड्स हैं। तो मैंने तो ऐसे किया था, और 2-3 प्रोफेसर्स थे, उनको मैंने कहा था कि सर मैं जानना चाहती हूँ एंड आई विल नीड योर सपोर्ट, आई विल नीड योर हेल्प अगेन एंड अगेन, एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में। तो फिर उन्होंने हेल्प की थी, और उनका ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप उनको टेम्पलेट देके बोलो पहले से ही कि सर आपको 2-3 दफा साइन करने पड़ेंगे या तो 3 दफा लूप इन होना पड़ेगा, तो इट डजंट हर्ट। डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन, और मैंने हाँ अपने डिपार्टमेंट के HOD से लिया था, एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे जिन्होंने PhD किया हुआ था जर्मनी से, उनसे लिया था, और एक और रिकमेंडेशन भी मैंने PhD प्रोफेसर से लिया था जिन्होंने नेदरलैंड से PhD किया हुआ था। तो इस तरह के तगड़े प्रोफेसर उठाओ और उनको बोलो सर प्लीज आपको सिर्फ साइन करके 2-3 दफा तंग होना पड़ेगा, बट प्लीज प्लीज प्लीज, वो मान जाते हैं। वकार कह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है लाइक IBBC और HEC फॉर एनी ऑफ दी स्कॉलरशिप्स, आई डोंट नो, चेक दैट, आई एम नॉट श्योर। मुझे 4-5 साल हो गए, मुझे याद नहीं है मैंने ऐसा कुछ कराया था कि नहीं, बट आई डोंट थिंक सो होती है। Anything else? You can ask me anything. I guess this is it. Thank you so much, Momal, for such an amazing अस्सलाम session. वालेकुम मैम, एक क्वेश्चन अगर आप इजाज़त है तो मैं पूछ जी सकता जी हूँ? प्लीज यू कैन हैव द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम काजी खुर्शीद है और मेरा क्वेश्चन ये है कि एक परसेप्शन ये है कि आप बैचलर में अगर आप कोई रिसर्च पेपर हो तो वो ज़्यादा जो है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो इस हवाले से अगर किसी का रिसर्च पेपर ना हो या किसी का कॉन्फ्रेंस पेपर हो तो इस हवाले से अगर कोई कोई ऐड मसला करना है। कोई भी मसला नहीं है, उन्होंने रिक्वायरमेंट्स में थोड़ी ना कहा हुआ है कि आप रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करेंगे तो हम आपको US नहीं बुलाएंगे। आप GPA दिखाओ, आप GRE का स्कोर दिखाओ, आप अपना SOP दिखाओ, आप अपना RO दिखाओ, आपने अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट किया हुआ है या आपके पास कोई अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है वो दिखाओ, उन पे वो बेचो। आपके पास पब्लिकेशन नहीं है तो क्या हो गया, इट डजंट मैटर, जरूरी बिल्कुल नहीं है। जिनके पास वो होगी उनके पास बाकी चीजें नहीं होंगी तो वो उसको इस्तेमाल करके उसको बेचेंगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा उसको बेचो। तो अपनी वीकनेसेस को छुपा के अपनी स्ट्रेंथ्स को इकट्ठा करो, क्योंकि दैट हेल्प्स यू लैंड द फुलब्राइट स्कॉलरशिप। ओके मैम, थैंक यू।
साहिल कह रहे हैं 4+ industry experience after BS affect chances or not? Affect means in negative way. I don't think so, Sahil. It's actually a good edge for you if you use that industry experience to your advantage और उसको इस तरीके से portray करो कि you have identified the challenges, you have identified the gaps, you have identified the needs और आप बड़ा strong RO लिख सकते हो. आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का सेक्शन बड़ा स्ट्रांग रख सकते हो. तो अगर आपका जीआरई थोड़ा सा हिल भी जाता है, अगर आपकी जीपीए थोड़ी सी हिली हुई भी है, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस बड़ा एज देगा आपको. तो ये बिल्कुल भी नेगेटिव वे में इफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये तो आपका स्ट्रांग पॉइंट है. अच्छा मैम, मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस में की है, लेकिन मैंने वर्क एक्सपीरियंस जो है वो बैंकिंग में है, तो ये तो अदर फील्ड हो, अलग फील्ड होगी है ना. कितने साल का बैंकिंग में एक्सपीरियंस है आपका? तकरीबन 1 साल से ज़्यादा. दैट डजंट हर्ट, इट्स ओके. बीएस के बाद, फ्रेश ग्रेड होने के बाद हम सब लॉस्ट होते हैं, हम सब डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहे होते हैं टू सी व्हाट वर्क्स. आप उस वर्क एक्सपीरियंस को ज्यादा हाईलाइट मत करो. अगर उसमें कुछ सीएस का अच्छा काम था तो बता दो, वरना बोलो कि उसको अपने बेनिफिट पे यूज करो कि मुझे कोई रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ नहीं मिल रही और मेरा पैशन बैंकिंग में नहीं है. आई हैव बीन डूइंग दिस बैंकिंग की जॉब जो मुझे डेड एंड फील हो रही है, मैं ग्रो नहीं कर रहा, मेरी सैलरी अच्छी नहीं है, मुझे अच्छी तबाही तगड़ी अपॉर्चुनिटीज चाहिए ताकि मैं लाखों में नोट छापूं. ये मत कहना. बट यू कैन से कि वो मेरे गोल्स के साथ और मेरे मुल्क को ज्यादा फायदा नहीं दे रहा और मेरे लिए भी ग्रोथ की ज्यादा अपॉर्चुनिटी उसमें नहीं है, तो मैं अपने डोमेन की जॉब्स करना चाहता हूँ, वो मुझे यहाँ अच्छी मिल नहीं रही. इसलिए मुझे लगता है कि मैं बाहर आके एमएस करूँ तो मेरे पास एक्सपोजर होगा, अच्छे कोर्सेज होंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी और मैं यहाँ आके अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट कर लूंगा. या फिर मुझे पता चल जाएगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए हंट कैसे करना है. बट इट्स ओके. अगर आपका बैंकिंग का एक्सपीरियंस है तो मेरा पाइथन डेवलपमेंट का था और मैं एआईएमएल में एमएस के लिए जाना चाह रही थी. तो इट कैन हैपन. हम सबको बीएस करने के बाद ही पता नहीं होता कि हमने जिंदगी में क्या करना है. वो तो फिगरिंग आउट फेज होती है 1-2 साल. इट्स ओके. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम मैम, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, और ये क्वेश्चन जो है, जिस तरह आपने कहा कि आपने एमएस जो है एआई एंड एमएल में की है, और मेरा अपना बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग है, और मैं जो है एआई और एमएल जो है ना, ये मैं अभी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ उसकी तरफ, कि मैं अगर एआई और एमएल अगर मैं सीखना चाहूँ तो कोई प्लेटफॉर्म आप बता सकते हैं मैम, कि बैकग्राउंड आपका थोड़ा सा वीक हो इस चीज़ में. एआईएमएल सीखने के लिए बिगिनर्स को जो है जवाब, आई हैव टू स्टडी योर प्रोफाइल. मुझे देखना पड़ेगा कि आपका कैलकुलस, मैथमेटिक्स, पाइथन और कंप्यूटिंग कोडिंग में आपका एक्सपीरियंस कैसा है. मतलब आपको डेटा कोडिंग और बेसिक मैथ आती है कि नहीं. अगर ये आती है तो फिर बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल आई कैन एक्चुअली हेल्प यू क्राफ्ट अ रोड मैप. कुछ कोर्सेज हैं कोर्सेरा पे, आप बिगिनर्स इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन से एनजीओएनक्यू से स्टार्ट कर सकते हो. वो मुश्किल लगे तो फिर उससे पीछे के भी कुछ कोर्सेज हैं, अगर वो आसान लगे तो उससे एडवांस भी कुछ कोर्सेज हैं. बट मेरे पास डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग आते रहते हैं, डिफरेंट डोमेन के, डिफरेंट सीएस के सब डोमेन्स के एआईएमएल सीखने के लिए. एंड एनीबडी कैन. और एआईएमएल का बूम चल रहा है तो सब इसको सीखना चाहते हैं, विच इज़ ग्रेट एक्चुअली. एंड एवरीबडी कैन विद एनी बैकग्राउंड एक्सपीरियंस. और अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो एंड्रयू एंग का एआई फॉर एवरीवन वाला कोर्स से उठा के कर लो. थैंक यू मैम. ऑफ कोर्स. I want to answer का सवाल. How do we detail about a job given it's a stealth mode one but it's aligned to the MS? मेरा मुझे समझ नहीं आई, उर्दू में पूछो यार. अच्छा मैम, ये एक और चीज़ थी, मैंने बीएस तो 2022 मार्च में पास किया, लेकिन ये अभी तो काफ़ी गैप हो गया है ना. गैप के बारे में आप क्या कहती हैं? कितना गैप? मतलब 22 में मैंने बीएस किया ना. 22 में बीएस के तो क्या, बस अभी 1-2 साल हुए ना, क्या हो गया? तो बहुत ज्यादा गैप हुई ना. यू कैन ट्राई, इट्स फाइन. मैंने भी 1 साल के गैप के बाद किया था. फिर एप्लीकेशन मेरा 18 में ग्रेजुएट हुआ था. 19 में मैंने कुछ नहीं किया था, 20 में मैंने अप्लाई किया था और 21 में मेरा मास्टर्स शुरू हुआ था. 1 साल लगता है एप्लीकेशन प्रोसेस में भी. अभी भी आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोग का एमएस अगले साल शुरू होगा. इट्स फाइन, कोई भी मसला नहीं है.
अपनी कमजोरियों को अपनी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ के तौर पे इस्तेमाल करो। जी आरिश। So Momil, you have now the global experience like for in Dubai. So मुझे पूछना था कि मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड का हूँ, टेस्ट ऑटोमेशन वगैरह, तो मैं इसको आरओ में कैसे ऐड करूँ? मतलब इसमें मैं अपने आरओ में मसाला कैसे ऐड करूँ? फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेरा इंटरेस्ट है, AI/ML में इतना नहीं, लेकिन AI/ML को मैं इंटीग्रेट करूँगा ताकि फ्लीकी टेस्ट वगैरह, तो इससे मैं अपनी प्रोफाइल को कैसे मतलब आरओ को कैसे मतलब कर सकता हूँ कि उनको बता सकता हूँ कि हाँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सब फील्ड है लेकिन इसको ही आगे परस्यू करना है। आप MS करने जा रहे हो PhD? MS किस फील्ड में? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ही आगे रहूँगा, लेकिन आई विल चूज AI या इस चीज़ को ही एज एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ही आगे आगे मुझे रहना। आपने एक्सप्लोर किया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कोई एडवांस मास्टर्स या PhD के डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं? मैंने एक्सप्लोर किया लेकिन एज सच तो मुझे कोई नहीं मिला कि मतलब ज़्यादातर मुझे यूरोपियन साइड में दिखी है वो सिक्योरिटी टेस्टिंग है, वो भी एक अच्छा है आइटम पिक करने के लिए, लेकिन US मार्केट में मुझे इतना अभी तक शायद मैंने इतना सही रिसर्च नहीं किया, लेकिन मुझे इतना नहीं मिला। आप देखो, सॉफ्टवेयर आप US यूनिवर्सिटीज में देखो, आपने आरओ में लिखना है ना कि आपने MS किस चीज में करना है, फिर उसमें स्पेशलाइजेशन क्या होनी चाहिए, तो आपको अपनी डिग्री के प्रोग्राम का नाम पता होना चाहिए। अगर आप अनक्लियर होगे ना, ट्रस्ट मी, वो किसी भी प्रोग्राम में किसी भी यूनिवर्सिटी में घुसा देंगे, फिर आपको US का वीजा देंगे, बंदा रजिस्ट कर नहीं सकता, बंदा डॉलर्स के खातिर जिंदगी के 1-2 साल ख्वार कर देता है किसी और जगह पे। तो इसमें जरूर होमवर्क करो, इसमें आप जितना इन्वॉल्व होगे उतना आप सेटिस्फाइड होगे कि हाँ ये मेरी चॉइस है, मेरा 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 चूज किया हुआ प्रोग्राम है, मेरी यूनिवर्सिटी है। तो हाँ, लेकिन विद योर एक्सपीरियंस इन US एंड राइट नाउ, आपको मतलब लगता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ही रहते हुए मतलब स्पेशलाइजेशन कोर्सेज इन US मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, मैंने होमवर्क नहीं किया, आई डोंट नो इनफ टू से कि नहीं मिल सकते। अगर आप ढूंढो, आई बिलीव कि हर फील्ड का स्कोप होता है अगर उसमें मेहनत की जाए। अगर आप ढूंढो तो देयर माइट बी सम रियली ग्रेट स्टार्टअप्स जिसमें आप जाके इंटर्नशिप्स कर सकते हो, देयर माइट बी सम ग्रेट प्रोग्राम्स जो आप उठा सकते हो। अगर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डिग्रीज आपको नहीं मिल रही है MS की, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या फिर CS की डिग्रीज उठा सकते हो, जिनमें ज़्यादातर कोर्सेज आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के उठा लेना, 80-90% कोर्सेज इस तरह उठा लेना। मेरी डिग्री का टाइटल MS-CS था, सारे कोर्सेज मैंने ML के उठाए हुए थे, कंप्यूटर विजन के, NLP के। आप भी ऐसे कर लेना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री पकड़ के उसमें आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कोर्सेज उठा लेना। आप जिस यूनिवर्सिटी को देख रहे हो उसके आसपास देखो, रिमोट इंटर्नशिप्स देखो, रिमोट जॉब्स देखो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में है कि नहीं। US की मार्केट देखनी है, US का फिल्टर लगाओ, 3-4 मेन सिटीज के नाम लिखो और देखो कि सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की जॉब कितनी है, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के क्या हालात हैं क्या नहीं है। मैंने इस डोमेन में ज़्यादा रिसर्च नहीं की तो मैं एग्जैक्ट आपको स्टैट्स नहीं दे सक रही, बट आई बिलीव कि अगर आपको इस फील्ड में पैशन है तो एक्सप्लोर करो, आपको लीड्स मिल जाएंगी एंड इट माइट बी एक्चुअली गुड। या थैंक यू। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा कि एक मिनट फाहमी, मैं निम्रा के सवाल का जवाब देती हूँ, उसने बहुत पहले पूछा यार। Job for which sharing detail about the work isn't allowed, how to include it in study objective। अच्छा निम्रा, ऐसी जॉब आप कर रहे हो जिसमें आप IP of your employer expose नहीं कर सकते, so you don't have to, you can include the details in a way जो जिस लिमिट तक आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउ कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने ट्यूरिंग के साथ काम किया था जिसमें मैंने गूगल का LLM जेमिनाई ट्रेन किया था। अब ट्यूरिंग मुझे ये इन्फॉर्मेशन एक्सपोज नहीं करने देता था जब तक मैं उनके साथ एम्प्लॉयड थी, बट नाउ आई एम नॉट, सो आई कैन ओपनली शेयर। लेकिन जब तक मैं थी, मैं क्या कहती थी कि मैं ट्यूरिंग की एम्प्लॉई हूँ और आई एम हेल्पिंग ट्रेन LLMs फॉर सम मेजर कंपनीज। तो PI को हाइड करके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP को ऑफ दैट एम्प्लॉयर हाइड करके भी आप अपनी अचीवमेंट्स या आपने खुद उनको कैसे कंट्रीब्यूट किया ये शेयर कर सकते हो। तो एम्प्लॉयर ये तो नहीं कहेगा ना कि ना मेरी कंपनी का नाम लेना है, ना तुमने यहाँ पे जो काम किया उसका नाम लेना है, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा तो नहीं है ना। एम्प्लॉयर आपको सर्टेन इंपॉर्टेंट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करने देता, आपकी अचीवमेंट्स तो शेयर करने दे सकता है। तो इस तरह करो, लेकिन उनके साथ सिंक करना कि ये ना हो फिर मसला ना हो कि मैं ये बिट्स ऐड कर रही हूँ तो मैं किस हद तक ऐड कर सकती हूँ। कंपनी में किसी से पढ़वा लेना अपना आरो एक दफा। ओके, सजाद कह रहा है मैंने BS की डिग्री इस्लामिक स्टडीज में कंप्लीट की है, कैन आई अप्लाई फॉर फुलब्राइट स्कॉलरशिप? आई गेस यू कैन,
अगर आपने इस्लामिक स्टडीज में बीएस किया है तो आप यूएस जाके इस्लामिक स्टडीज में एमएस कैसे करोगे? मुझे नहीं पता रिलीजियस स्पेसिफिक एमएस होता है कि नहीं, आपका डोमेन थोड़ा सा वो है। क्रॉस रिलीजन या फिर अगर आपने डिफरेंट रिलीजन्स को पढ़ना है, इस तरह का कोई सब्जेक्ट हो सकता है। वैसे यूएस जो है वो पॉलिटिकल और रिलीजियस टॉक्स के खिलाफ होता है, और फुल ब्राइट प्रोग्राम भी। लेकिन आप प्रोग्राम से एक्सप्लोर करो, मैं आपको बिल्कुल भी डाउन प्ले या अंडर अप्रिशिएट नहीं करूंगी। आपने अच्छा डोमेन उठाया, आपने उसमें 4 साल लगा के बीएस किए, बेहतरीन है इस्लामिक स्टडीज। बट आप देखो कि आपको अगर इस्लामिक स्टडीज एग्जैक्ट नहीं मिल रहा तो आपको फुलब्राइट स्कॉलरशिप या यूएस में एमएस या पीएचडी के डिग्री प्रोग्राम्स रिलीजन या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो फिर तो आप बस प्रोग्राम मिल जाता है। अगर यूएस की किसी कोई यूनिवर्सिटी वो एमएस या पीएचडी करा रही है तो जाओ करो। लेकिन इस्लामिक स्टडीज एग्जैक्टली शायद यूएस में आपको ना मिले। रिलीजन या क्रिश्चियनिटी या फिर कंपैरिजन ऑफ रिलीजन इस टाइप का शायद कुछ मिल जाए, तो वो देख लेना। जवाद कह रहे हैं थैंक यू, यू वेलकम जवाद। जुनैद कह रहे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में तो मेरा कजन है एप्पल कंपनी में यूएस में। दैट्स गुड जुनैद, आपका कजन है, आप भी लग जाओ। योर कजन कैन एक्चुअली हेल्प यू रिव्यू योर आरओ, ठीक है? कि आप अपने आरओ में अपने स्टडी गोल को या अपने रिसर्च गोल को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कैसे रखो, वो बड़े अच्छे से आपको रिव्यू कर देगा कि इसमें ये कंपोनेंट्स डालो तो वैल्यू ऐड हो रही है, यूजर एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है। मरीजा खलील कह रही हैं थैंक यू फॉर द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, कैन यू प्लीज स्पीक इंग्लिश, आई couldn't अंडरस्टैंड उर्दू, सो व्हाई डिडंट यू मेंशन इट इन आई एम सो सॉरी मरीजा, Marzia, sorry. I asked that in the start that if nobody understands Urdu, just raise their hand. You should have stopped me earlier. I've shared so much in Urdu. I'm so sorry. Marzia, if you have anything specific, if you need help, I've shared my Mentoga profile. You can schedule a session with me. I won't charge you for that because I switched so much to Urdu, and I'm sorry for that. So you can schedule a session with me on Mentoga, and I won't charge you for that. It'll be free for you because you missed this one. Yes. Junaid says, thank you, ma'am. Okay. Okay, Junaid. Junaid, if you have anything else you want to ask, you can. And you guys, thank you so much. This was really great. I enjoyed talking to you all. Best of luck to all of you. आप सब चीते हो. You guys are all awesome. सबकी बेहतरीन profiles हैं. Everybody has great profiles. You guys totally deserve to see US. You guys totally deserve to go and explore this wonderful opportunity. You guys are totally worth it. Just work hard on your RO, on your SOP, on your GRE. Give 100% to each and every part of this application process, and you will be like compensated like hell. I got to travel New York. I saw DC. I saved so much. मैंने अपने जहेज का कितना बहुत सारा सामान Fulbright scholarship के पैसों पे बनाया था. Right, I got to make so much stuff for me to get married based on this stipend that I was getting from Fulbright. I got sone ke kade. I made I upgraded my entire thing. I got a new iPhone. I got a new Apple ka laptop. I got a new iPad. I got new earbuds. Usse pehle I was working on a dumb Windows key machine. So it pays off, and then I worked on those great things. I used that money. I had great exposure. I met great folks. I came back to Pakistan. If I share my original story, what happened after I landed in Pakistan, I came back. I was completely clueless what to do, but I had one goal that I want to work in FANG. I want to work in Google. So I started working on DSA. I brought some books with me. Oh, startup wali batein, I mentioned all that startup stuff in my RO and all, but I wasn't in the mood. I tried something when I came back, but it didn't work out. So that was shut down. So I kept trying for, I guess, 4 months after I landed in Pakistan, after completing my master's in US from Florida. I was unemployed. I kept doing my homework. I kept trying. I kept applying. I kept practicing. And ultimately, I got a job within 4 months of landing in Pakistan of 70,000 euros. I'm just sharing the exact numbers to give you guys. Or usse pehle, before going to US, I was doing an internship in a software house in Peshawar for 30,000 PKR.
That's it. And when I came back to Pakistan after 4 months, I landed my first job in a startup in Germany, Super AI, as a machine learning engineer, and my salary was 12 lakh. So just see the difference. It pays off. So even though I came back to Pakistan, I spent 2 years home residency requirement. I got married. I spent good time with my family, and then I came out of the country again. Now I'm in Abu Dhabi, and I plan to go to US again through some other channels that I have. But it pays off. It was one of the best 180-degree shift experiences of my life, of just going through Fulbright scholarship to US. So you guys are totally worth it. बिल्कुल आपकी मेहनत, आपके इनपुट, ये एसओपी आरओ, ये आपकी जिंदगी बदल देते हैं. इनके अलावा आपसे कुछ नहीं लग रहा. सिर्फ 60, all you have, the financial input you have to put in is just 60-70,000 for the GRE and TOEFL you have to do, and that was the best investment I've did in my life. My father was skeptical ke all you're running is 30,000 and you're just putting it all in here. You've just gone crazy. This is not gonna come back. And just this year, I got my parents. I sent them to Saudi for doing their Umrah, and it was around 6 to 7 lakh. And my dad was so happy that I was wrong that time. So I'm sharing these first-hand things with you. I'm just an average student like you. I don't have a crazy GRE. I didn't study in Harvard and Stanford. I was a girl from Peshawar with no vision, no nothing, just a kitabi kira, just a nerd, and no leads, honestly. And Fulbright changed me. It changed my life, and it can do the same for you. So don't self-reject, don't self-doubt. Give the best you can to this SOP, to this RO, to this GRE, to this TOEFL, and then rest will follow. So I wish you all a really great luck. Thank you so much for having me, and that's all. Thank you so much, Momal. This is really, really amazing. The session was really, really cool, and I hope everybody enjoyed it as well. We did go over time. We usually do it an hour, but thank you so much for the amazing session, and thank you everybody for joining in as well. You will hopefully find the recording to this soon on YouTube. So have a good day, everybody, and Allah Hafiz, Momal.